of CIRC Anil Yadavji, which is again a very important for all of us. Wish you all the best for this event and hope that you will be take deep knowledge of on the subject. Friends, if you दोस्तों अगर if you want to enjoy for a minute, take a nap. If you want to enjoy for hours, go for a movie. If you want to enjoy for a day, go for a picnic. Friends, but if you want to enjoy your life, do your chartered accountancy course. Or CA profession is ever learning and never learning. Ever learning means hard working, honesty, integrity, and technological updation. And never learning means disrespect to elders, Congress to wrongdoing, and not to follow the laws. Today, I would like to share a few words of wisdom with you based on my own experiences and observations. These words are not mere remarks, but rather lesson I have learned throughout my career and life. I hope they echo with you and serve as a guiding lights as you navigate the challenging and rewarding world of chartered accountancy. Dear friends, remember these 6 words of success, not a profession, but in your life too. Sikasa. This is Sikasa's conference. I have made the Sikasa for the success of your life. The first C stands for continuous learning. The area of finance and accounting is constantly evolving, driven by the technological advancement and changing regulatory landscapes. Never stop learning and updating your knowledge. Seek out opportunities for professional development. Stay abreast with the industrial trend and be proactive to acquiring new skills. These commitment to lifelong learning will set you apart as a competent and valuable professional. Valuable professional. Friend, I ICACSA. I integrated above all. As chartered accountant, integrated should be cornerstone of your professional ethics. Your role is to be served the public interest and this necessity, unwearing honesty, transparency, objectivity. Uphold the highest ethical standard in all your professional endeavors for integrity to bedrock upon which trust is built. Again, C stand for challenging as opportunities. Challenges should be taken as an opportunity. The road to becoming the chartered accountant is not an easy one. There will be the moment of doubt, setbacks, and demanding situations. Embrace these challenges as opportunities for growth. It is these moments of adversity and true character is posed. Stay calm, maintain a positive mindset, and see every obstacle as a stepping stone of your success. To convert the challenge into opportunity is the biggest thing what you can do is A stands for the active your communication skill. Active and activate. Technology, knowledge, and proficiency are essential, but they are incomplete without the ability to communicate effectively. Develop a strong verbal and written communication skill. Friends, what we have seen that there is a very there's a difference between the MBA and chartered accountant. We have good knowledge, everything is with us, but we have a lesser communication skill. That's why IMs and they are getting the good jobs and good opportunities. So you or we should also activate our communication skills so that we can take the challenges according to the market uh, worldwide. As chartered accountants, you will often be called upon to provide the guidance and advice to clients, your colleagues, and your ability to communicate clearly will be the instrumental to drive positive outcomes. S stands for social and professional relationship.
Sikasa. This is, remember, you can remember every time, because this conference Anil is doing for income tax, but Sikasa word is can change your life and the success in your life and professional also. S stands for social professional relationship. The field of accountancy is inherently collaborate, and your ability to build the maintain professional relationship will significantly impact on your career. Sorry. Cultivate a network to peer, mentor industry professionals. Seek opportunities to collaborate, share knowledge, and learn from others. Remember, success is rarely achieved in isolation. And A, again A. A stands for advancement of technology. The digital revolution has transformed the world for finance and accounting. Advancement of technology as an enabler of efficiency, accuracy, and innovation. Stay updated with the latest software, tools, and platforms that can enhance your professional practice. By advancement of technology, you can unlock your new avenues for growth and expand your origin of your capabilities. In conclusion, my dear friends, the Chartered Accountancy course is rigorous and demanding path, but it is also a gateway of the world of opportunity and professional growth. Remember the word Sikasa, as explained by me. Last but not least, as inspiring chartered accountant, it is a natural to dedicate the significant amount of time and energy to your studies and professional pursuits. However, it is essential to maintain a healthy work-life balance, prioritize self-care, physical well-being, and personal relationship. Remember that fulfill the life encompassed more than just professional achievement. Stay committed to your goals, lifelong learning, and embody the highest ethical standards. Remember that success is just defined as a complement, but the impact you make on your lives of others, the betterment of the society. Remember the what I remember the movie song, अपने लिए जिए तो क्या जिए, है जी, है दिल तू जी जमाने के लिए. Wishing the best of luck to all your future endeavors. Thank you for your presence hearing. Jai Hind, Jai Jinendra. Thank you, sir. Thank you so much, Sudhir sir, for your kind words. And definitely, जो वर्ड्स हैं उनसे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ सीखा भी होगा, और आगे भी बिल्कुल वी विल ट्राई कि आगे हम आपको बुलाते रहें, आप ऐसे टाइम देते रहें. थैंक यू सो मच सर. Friends, thank you sir. Friends, Thank now you, we have with us Naman Maluji, and sir, we will discuss today's actually the today's webinar. इसमें हम बच्चों को ये बताएंगे जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है, बिकॉज सीजन आ गया है अभी पूरा, तो इसके अंदर जो एक तो जो कॉमन मिस्टेक भी होती है सर रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो आई रिक्वेस्ट नमन जी की जो मिस्टेक भी हम लोग करते हैं ना कई बार कि 4480 में क्या मिस्टेक कर रहे हैं या नॉर्मल क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ये एग्जाम इनकम में जाना चाहिए या आना ही नहीं चाहिए, तो प्लीज वो भी आप कवर करें. और बच्चों की जो भी क्वेरीज हो, बच्चों जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी, आज से रिलेटेड क्वेरी रहेगी वो हम आज सॉर्ट आउट कर देंगे, और कल के जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी रहेगी कल करेंगे. और उसके बाद भी कोई क्वेरी आपकी रहती है तो नमन ने खैर मुझे बोला नहीं है, बट मैं आई एम डैम श्योर कि नमन जी को हम कभी भी हम डिस्टर्ब करते हैं तो ही इज ऑलवेज अवेलेबल. मुझे कह रहा है कि भैया अच्छा मेंबर से ज्यादा ही इज ऑलवेज हैप्पी विद द स्टूडेंट्स. बोला सर मैं हम सर मेंबर्स के लिए भी हम नमन जी ने कहीं वेबिनार लिए हैं, हम सेमिनार भी हम साथ करने जाते हैं, बट नमन इज ऑलवेज कंफर्ट विद स्टूडेंट. बोला स्टूडेंट्स को सिखाने में ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, और अपने ऑफिस के अंदर भी जो पूरे आर्टिकल्स है इनके, वो सब इनके साथ ही सब चीजें सीखते हैं. तो डेफिनेटली नमन जी, आई होप कि आप जितनी भी जो हम प्रॉब्लम जहाँ आ रही है, जो ग्रे एरिया है जहाँ पे हम लोग रिटर्न फाइलिंग करते समय कई बार हमने देखा है कि बच्चे वहां गलती कर देते हैं, तो वो गलती ना करें, और कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, जो आपने टॉपिक्स लिए वो भी बहुत अच्छे हैं. तो थैंक यू सो मच नमन जी. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना सब आपका है, 2 दिन तक आपको संभालना है बच्चों को पूरा, और 2 दिन बाद जो भी बच्चे हैं, आज जो भी स्टूडेंट्स है वो सोच के चलें कि हमें पूरा सीखना है. और बच्चों कोई आपको शर्माना नहीं है. कई बार हमें लगता है कि मैं पूछूंगा तो क्या लगेगा, कुछ नहीं. आपको लगता है कोई सिंपल चीज भी पूछनी है तो आप पूछिए, आपको हिच है, क्योंकि लाइफ में हमें कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा. आज मुझे कोई चीज नहीं आती, बट आज मैं किसी वेबिनार के अंदर हूँ, वहां मेरी चीज क्लियर हो सकती है,
तो उसको बिल्कुल क्लियर करें। आपके मन में कुछ भी सस्पेंस है, आपको लगता है यार ये चीज यहाँ आएगी या यहाँ आएगी, आप बिल्कुल, आज एक्सपर्ट आपके साथ के अंदर है, तो आपकी कोई भी क्वेरी, इवन छोटी से छोटी क्वेरी भी आपकी, चाहे सैलरी इनकम से रिलेटेड हो, चाहे एग्जाम इनकम से रिलेटेड हो, मैं तो कह रहा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कहाँ आना चाहिए सर, कितनी छूट है, जो भी मन में क्वेरी है पूरी आप पूछिए। बिकॉज हम घर में तो बैठ के कोई चीज पूछ सकते हैं, बट कोई ओपिनियन अगर हम बाहर कहीं देंगे तो वो गलत जाएगा। तो हम घर के अंदर बैठे हैं, आपकी जो भी क्वेरी आज पूरा आप नमन जी को आप पूछना, कल भी पूछना, उसके बाद भी कहीं क्वेरी होगी तो खान साहब को मेल डालना, खान साहब बिल्कुल आपका पूरा लगाएंगे। थैंक यू Energy, I सर। have preoccupation. I will take leave from you. ओके, थैंक यू Thank you, सो मच sir. सर, थैंक यू Thank you, Sudhir sir, for your presence. Welcome, welcome. Thank you, everybody. तो नमन जी, नाउ इट्स ऑन यू, अब आप पूरा समझिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। तो जैसा अनिल सर ने कहा कि स्टूडेंट्स हैं हम, बट क्या होता है कि स्टूडेंट्स ही अगर जब तक सब चीजें क्वेरी सॉल्व नहीं करेंगे तो आगे चल के आप ही फ्यूचर सीए हैं। तो अगर आप आज अपनी क्वेरी सॉल्व कर लेंगे, मैं भी शायद अपने ट्यूशन के टाइम पे थोड़ा शर्माता था कुछ क्वेश्चंस पूछने में, बट अब जब सीए बन गए तो लगता है यार अगर ये क्वेश्चंस मैंने तब पूछ लिए होते तो आज शायद मेरे को ये सब क्वेश्चंस का कोई इशू नहीं होता। तो क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी, हमारे टाइम तो वेबिनार और ये सब होते नहीं थे, सब कुछ सेमिनार जाके कुछ हो जाए तो अटेंड कर लो। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप ऑफिस में बैठे बैठे या घर बैठे बैठे जहां भी आप बैठे हैं वहां बैठ के आप अपना वेबिनार एंजॉय कर सकते हैं। एंड मेरे साथ ये रहेगा कि हम लोग ये क्वेश्चन, अपने जो सेशन है उसका कुछ ग्राउंड रूल सेट कर लेते हैं कि जो ये सेशन रहेगा वो बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। आपको जो क्वेरीज आती है आप पूछिए, बीच में अगर मेरे को भी लगता है जहाँ क्वेश्चंस पूछना चाहिए मैं पूछूंगा, और आई एक्सपेक्ट कि आप लोग उसको आंसर करेंगे या एटलीस्ट इंटरेक्ट करेंगे यस नो बोल के, या जो भी उसके अंदर आंसर देना होगा वो आप देंगे, तभी मजा आएगा। यहाँ पे हम सीखने आए हैं ना, मैं कोई वन वे कम्युनिकेशन करने आया हूँ ना, मैं यहाँ पे कुछ समझने आया हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि 2-3 ईयर्स में जिसका भी जो भी ईयर होगा आर्टिकलशिप का, उसके 1 या 2 साल में वो सीए बनने वाला है। तो आई एम अज्यूमिंग दैट आई एम इंटरेक्टिंग विद द फ्यूचर सीएस। तो आप लोग में उतना स्किल्स आप डेवलप करें ताकि आप भी क्वेश्चन कर सके काउंटर, जो भी आपकी क्वेरीज हो पूछे। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अपना वेबिनार। तो इज माय स्क्रीन विजिबल? यस सर, विजिबल है। यस सर, ओके सर। तो ये हमारी आज का हमारा जो टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एंड रिटर्न फाइलिंग। तो इसमें मेरी टीम को मैं पहले थैंक्स कहना चाहूंगा, पुलकित अग्रवाल, मृदुल खंडेलवाल एंड निशिका गुप्ता, जिन्होंने मेरे को ये पीपीटी बनाने हेल्प की है। अब क्योंकि ये पीपीटी थी ही स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने कहा कि स्टूडेंट्स का नजरिया भी समझ लेते कि उनको एक्चुअल में क्वेरीज क्या आती है। तो इसलिए मैं जो मेरे साथ जो काम करते हैं, मेरे कलीग्स हो गए, मेरे आर्टिकल्स हो गए, उनको मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना इनपुट भी दिया इसके अंदर। नॉर्मली भी वो हर पीपीटी में हमारी हेल्प करती हैं। सो इसमें हम देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है, उसके अंदर आपके ये टॉपिक्स कवर होंगे। Points to remember while filing ITR, importance of filing ITR, people who are exempt from filing ITR, अगर इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होती है तो क्या होगा, फॉर्म 16 क्या होता है, एचआरए कैसे कैलकुलेट होता है, चैप्टर 6A के जो 80C के डिडक्शंस और ये सब होते हैं वो सब क्या होते हैं। तो ये सब चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये पोल जरूर लें। इसके अंदर आप जो क्यूआर है उसको स्कैन करें, क्यूआर को स्कैन करें और अपना आंसर दें कि कितने लोग हैं जो इनकम टैक्स प्रोफाइल में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे क्यूआर दिख रहा होगा, आप इसको स्कैन कीजिए और हम अभी देखते हैं, एटलीस्ट मेरे को समझ में आए कि मेरी ऑडियंस कौन है क्या है। तो इफ यू कैन क्विकली स्कैन क्यूआर, अगर क्यूआर स्कैन नहीं हो रहा है या कोई इशू हो रहा है तो आप जरूर कमेंट्स में डालें सो दैट हमको पता चले। चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं। 5 लोगों ने आंसर किया है। आई थिंक 100 लोग हैं तो एटलीस्ट 100 लोग तो रिप्लाई करें। इंटरेक्टिव रखेंगे इस सेशन को तो ही हमको मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। एक मिनट हम और वेट करेंगे। जितने लोग इसको स्कैन कर सके अपना मोबाइल निकालें। नॉर्मल कैमरा से स्कैन करना है कैमरा से कीजिए, पेटीएम से स्कैन करना है पेटीएम से कीजिए। पर इस पोल का आंसर दीजिए कि कितने लोग हैं जो इनकम टैक्स में काम करते हैं या उन्होंने आज तक कभी इनकम टैक्स में काम किया है, और कितने लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स में काम ही नहीं किया है।
अभी तक 40 लोगों के वोट्स आए हैं। मैं एक आधा मिनट और रुक रहा हूँ। हम लोग एक 75 का मार्क टच कर लेते हैं अगर होता है तो, क्योंकि इतने लोग तो प्रेजेंट है मीटिंग में। तो अगर उतने लोग आंसर दे देंगे तो एक मेरे को अच्छा सैंपल मिल जाएगा जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई मेरे को कितना उसको टेक्निकल रखना है, कितना नॉन टेक्निकल रखना है, उस हिसाब से थोड़ा पता चल जाएगा। चलो 50 लोगों ने तो वोट कर दिया है, जिसमें 80% अभी तक ये आ रहा है कि 80% लोगों ने या 78% लोगों ने जीएस इनकम टैक्स में काम नहीं किया है। चलिए ठीक है, 50 लोगों का सैंपल ही हम ले लेते हैं। इसके अंदर अभी जो मैक्सिमम आ रहा है कि ये है कि मैक्सिमम लोगों ने इनकम टैक्स में काम नहीं किया है। तो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे को बहुत बेसिक लेवल पे लेके चलना है इस चीज को, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये चीज समझ आए कि कैसे काम होगा इसके अंदर इनकम टैक्स में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब हम। यहाँ पे हम समझते हैं कि पहले यार ये आईटीआर फॉर्म होता क्या है और इसको भरना जरूरी क्यों है। तो इतिशा पूछ रहे हैं कि हे पुलकित, आई एम कंफ्यूज विच आईटीआर फॉर्म आई शुड फाइल, इवन आई डोंट हैव द क्लैरिटी रिगार्डिंग व्हाट इज आईटीआर फॉर्म, सो प्लीज हेल्प मी। तो पुलकित जवाब देता है, आईटीआर इज अ फॉर्म वेयर पीपल डिक्लेयर देयर इनकम टू द आईटी डिपार्टमेंट। इन आईटीआर फॉर्म टैक्स पेयर्स डिक्लेयर देयर अर्निंग्स, एसेट्स, रिफंड टू बी क्लेम्ड एंड टैक्सेस दैट दे हैव पेड। तो इसका मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन तो ये आता है सीधा कि यार अगर मैं आईटीआर भरूं तो मैं क्यों भरूं, मेरी तो सैलरी इनकम है, मेरे को जो मेरा एम्प्लॉयर है उसने टीडीएस कट करके ही पैसा दिया है, तो फिर गवर्नमेंट के पास टैक्स तो चला गया ना। तो कई लोगों को तो ये लगता है कि यार आईटीआर फॉर्म मेरे को भरना ही क्यों है, आईटीआर फॉर्म का तो मतलब है टैक्स जमा करवाना। बट वैसा नहीं है बच्चों, अगर हम समझेंगे तो आईटीआर फॉर्म का लॉजिक ये नहीं होता कि आपको टैक्स जमा कराना है। आईटीआर फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपको अपनी इनकम गवर्नमेंट को डिक्लेयर करनी है। अगर गवर्नमेंट को आपसे खाली टैक्स ही चाहिए होता तो वो तो बोल देती ठीक है आप सीधा चालान लो और अपना टैक्स जमा करा दो। वो आईटीआर फॉर्म क्यों मांगती है? आईटीआर फॉर्म इसलिए मांगा जाता है ताकि वो आपसे पता करे कि आपकी इनकम कितनी है टोटल, और आपने जितनी इनकम कमाई है क्या आप वो डिक्लेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने अपना जो टैक्स है वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया है। तो ये उनको समझना होता है, इसलिए वो आईटीआर फॉर्म आपसे भरवाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और उठ के आता है, कई लोग ये भी सलाह देंगे मार्केट में कि बोलते हैं कि भाई आप आईटीआर फॉर्म ही मत भरो, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दोगे ही नहीं कि आपने कोई इनकम कमाई है, तो आपको नोटिस ही नहीं देंगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा है या नहीं है, आपके हिसाब से क्या है? आप चैट में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा कि आप आईटीआर फॉर्म के अंदर अपना रिटर्न भरे या ना भरे, गवर्नमेंट आपको नोटिस तब भी दे सकती है। गवर्नमेंट के नोटिस देने का और आईटीआर फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आपका बहुत सारा डेटा है, जो हम आगे चलते हुए देखेंगे कि गवर्नमेंट के पास आपका कौन कौन सा डेटा है, और उसके हिसाब से आप अपना डेटा गवर्नमेंट को दे या ना दे, उनके पास ऑलरेडी आपकी इन्फॉर्मेशन है। सो इट इज बेटर कि अगर आप अपना इन्फॉर्मेशन उनको रिटर्न भरते हुए दे दें, ताकि आपसे जब वो क्वेश्चन पूछे तो एटलीस्ट उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी हो। अब हम चलते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलिंग आईटीआर क्या क्या है। एक तो क्या होता है, आप आईटीआर भरते हो तो सबको पता है, जो लोग अभी नए नए आर्टिकलशिप में आए होंगे शायद उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा, पर कई लोग आईटीआर जो भरते हैं वो सिर्फ भरते हैं क्योंकि उनको लोन के अंदर उन्होंने कोई ओडी लोन या कोई होम लोन या कोई और तरीके का लोन लिया होगा। तो हर एक लोन या कुछ भी चीज फाइनेंशियली कोई भी आपको चीज करनी है तो उसका एक बेस डॉक्यूमेंट जो बनता है वो जनरली हर केस में आईटीआर ही बनता है। इनकम टैक्स रिटर्न के बेस पे डिसाइड होता है कि आपको लोन कितने का मिलना चाहिए। आपका रिटर्न के अंदर आपकी जितनी इनकम दिखती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लोन की जो इंटरेस्ट रेट होगी वो क्या हो सकती है। सो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया बट दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसके बेस पे आपको लोन दिया जाता है। इसके बाद आप इसके बेस पे अपना इनकम टैक्स को अपना रिटर्न बता रहे हो कि मेरा इतना टोटल इनकम मैंने इस साल अर्न किया और उसके ऊपर मैंने इतना टैक्स पे कर दिया। सो यू आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो। फिर इसके बाद कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज होता है, क्योंकि अगर आप रिटर्न टाइम पे नहीं भरोगे तो आप अपना लॉसेस जो आपने लॉस अर्न किए होंगे ड्यूरिंग द ईयर वो भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए रिटर्न भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के अंदर आप अपना लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे जो मेरे को लगा कि क्या रहते हैं इंपॉर्टेंस फाइलिंग के, तो वो ये सारे इंपॉर्टेंस रहते हैं। इसमें हो क्या सकता है, एक बार के लिए ये हो सकता है कि आपने अगर जीएसटी नंबर ना लिया हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने जीएसटी नंबर ना लिया हो तो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आपको ना पकड़ पाए। बट ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में आपकी सारी चीजें पैन और आधार से लिंक्ड है।
तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कोई इनकम कमाई होगी जो ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन के थ्रू कमाई होगी, हो सकता है आपने कैश में कमा ली हो तो गवर्नमेंट को ना पता चले, बट ऐसा कहीं नहीं होगा कि अगर आपने ऑनलाइन के थ्रू कोई इनकम कमाई होगी और गवर्नमेंट को पता ना चले। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, पीपल हु आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम फाइलिंग आईटीआर। तो खाली दो ही कैटेगरी मेरे तो समझ में आई है जिसमें पीपल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम फाइलिंग आईटीआर, जिसमें कि एक निकल के आता है कि अगर आपके 2.5 लाख की अगर इनकम से कम इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी, और उसके अलावा जो दूसरा एक आता है पॉइंट जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर नॉन रेसिडेंट है, ये एक स्पेशल प्रोविजन है नॉन रेसिडेंट्स के लिए, कि अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो और आपकी जो टैक्स है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डिडक्ट हो चुकी है तो फिर आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो यही मेरे को तो दो ऑप्शंस मिले। अगर आपको कोई और पॉइंट ध्यान है जिसके अंदर आपको आईटीआर नहीं भरना है तो आप जरूर कमेंट्स में डाल सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी आप उसको नोट डाउन करके रखिए। हम सेशन के एंड में आपकी सारी क्वेरीज का आंसर करेंगे, तो जो भी आपकी क्वेरीज रहे उसको नोट डाउन करिए, चैट में डालिए, तो हम सेशन के एंड में उसको ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि केसेस वेयर एसएससी हैज लोअर इनकम देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बट स्टिल रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर। तो ये कुछ प्रोविजनल अमेंडमेंट्स आए थे जो प्रोविजन में अमेंडमेंट किए गए थे, 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139 में अमेंडमेंट है ये, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर एक पर्सन की इनकम भले 2.5 लाख से कम होगी फिर भी उसको रिटर्न ऑफ इनकम तो भरना ही पड़ेगा। कौन से हो सकते हैं ये चीजें? पहला पॉइंट हो सकता है कि उसके पास बाहर एसेट हो, बाहर मतलब फॉरेन 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 कंट्रीज में या तो एसेट है या उसने इनकम कमाई है। अब अगर आपने फॉरेन में भले एसेट ले रखी है कोई भी, मतलब आप मान लेते हैं आपने कोई एक शेयर ले रखा है, एक XYZ पर्सन है जिसने टेस्ला के 10 शेयर ले रखे हैं। अब वो 10 शेयर उसने ले तो रखे हैं और हो सकता है उसकी इंडिया में कोई इनकम नहीं हो, तो वो बोलेगा मैं रिटर्न क्यों भरूं, बट क्योंकि उसने फॉरेन में एसेट्स ले रखे हैं तो उसको कंपलसरी इंडिया में रिटर्न भरना पड़ेगा और वो फॉरेन के शेयर्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे शेड्यूल FA के अंदर। तो ये पहला पॉइंट है कि अगर आपका फॉरेन से एसेट आ रहा है या फॉरेन में आपकी कोई इनकम है तो भले वो इंडिया में टैक्सेबल हो या ना हो, आपको उसको इंडिया में डिक्लेयर करके इंडिया में उसका रिटर्न भरना पड़ेगा। फिर ही पेज मोर देन 1 लाख ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपका पूरे साल में 1 लाख से ऊपर का बिजली का बिल आ रहा है। अब ये सब जो नीचे आप देख रहे हैं ये या तो खर्चों से रिलेटेड है या फिर आपकी बैंक से पैसा आप निकाल रहे हो उससे रिलेटेड है। अब इसमें गवर्नमेंट कहना ये चाह रही है कि अगर आप 1 लाख का इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हो या फिर आप 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हो बैंक अकाउंट के अंदर, या फिर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो जिसका खर्चा 2 लाख से ऊपर जा रहा है। अब भले हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल में आपकी टिकट ना हो, आपके साथ 4 लोग और गए हो, बट क्योंकि आपने सारा पेमेंट किया है या आपके बैंक अकाउंट से पैसा गया है तो हो सकता है गवर्नमेंट आप पे क्वेश्चन उठाएगी कि भाई आपको रिटर्न भरना चाहिए। गवर्नमेंट इन सब से कहना क्या चाह रही है? इन सब से गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि अगर आप 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हो दैट मीन्स कि आपकी 2.5 लाख से ऊपर तो इनकम होगी, और अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो आप रिटर्न भरें, ऐसा उनको लगता है। तो आपको रिटर्न भर के ये बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि नहीं भाई मेरी तो कोई 2-2.5 लाख से ऊपर की इनकम नहीं है, ये तो मेरा खर्चा हुआ है और खर्चा हटाने के बाद मेरे पास तो कोई इनकम बचती ही नहीं है। तो इसीलिए रिटर्न भरना जरूरी है, क्योंकि इन गवर्नमेंट को सिर्फ आपकी इनकम साइड दिखती है, आपको अपना एक्सपेंस साइड गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, तब जाके उनको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल में टैक्सेबल इनकम क्या है। इसलिए कभी भी ये ना समझे कि मेरे को तो, कई बच्चे हो सकता है जो लोग शेयर में भी इन्वेस्ट करते हो सब करते हो तो उनको लगता होगा कि यार मेरा तो लॉस हो गया, वैसे भी शेयर्स में क्या ही रिटर्न भरूं, गवर्नमेंट को तो क्या ही पता चलेगा, 1-8 लाख का ही तो मैंने शेयर्स का ट्रांजेक्शन किया था। बट वैसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई भी शेयर्स में ट्रांजेक्शन किए हैं, अगर वो 1-2 लाख के शेयर्स के ट्रांजेक्शन है, भले उसमें लॉस हुआ है तो उसको रिटर्न में इंक्लूड करें, रिटर्न अपनी फाइल करें। इसमें आपके 2 फायदे होंगे, एक तो आपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दे दी कि मेरा लॉस हुआ है, दूसरा क्योंकि आपने रिटर्न टाइमली भर दिया होगा तो आप वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर पाओगे, और जब आप फ्यूचर में गेन करेंगे शेयर्स के अंदर तो आप उस लॉस को शायद सेट ऑफ भी कर पाए और उस टाइम भी अपना टैक्स बचा लें। तो आप 2 तरीके से अपना टैक्स भी बचा रहे हो और गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ आईटीआर होते हैं वो हम आगे चर्चा में लेंगे, बट उससे पहले समझते हैं कि किन किन लोगों को आईटीआर भरना चाहिए। अभी हमने बात की इंडिविजुअल की, जहां ये कहा गया कि अगर आपका मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम की इनकम है, मतलब हम नॉर्मल सिनेरियो में लेते हैं 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन की 3 लाख होती है, सुपर सीनियर सिटीजन की 5 लाख होती है, बट अभी हम नॉर्मल सिनेरियोज ले रहे हैं। तो हमने इंडिविजुअल की बात कर ली, अब हम आते हैं कंपनी, LLP, पार्टनरशिप फर्म, ये भी एक बहुत ही कॉमन एंटिटीज हैं जिनका हम रिटर्न फाइल करते हैं। तो इनके लिए तो सेक्शन 139 है जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग को डिस्क्राइब करता है। तो सेक्शन 139 ने ये क्लियर कहा हुआ है कि इन केस ऑफ कंपनी, LLP और पार्टनरशिप फर्म,
उनको हर साल, रिमेंबर, हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही भरना है। मतलब आपके कहीं पे आपके ऑफिस में कोई क्लाइंट्स हो, जो लोग एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी हो, तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया हो, नहीं कमाया हो, बिजनेस किया हो उस साल में या नहीं किया हो, आपको उनका रिटर्न फाइल करवाना है। अगर कोई कंपनी बोलती है कि भाई मैं तो फरवरी में ही एस्टैब्लिश हुई हूँ, या मैं तो मार्च में ही एस्टैब्लिश हुई हूँ, मैं तो 28 मार्च को मैंने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है और मैं अपना स्टेटुटरी ऑडिट भी अगले साल करवाऊंगी 15 महीने का वो बेनिफिट लेके, तो भी भले आप स्टेटुटरी ऑडिट करवाएं नहीं करवाएं, आपको इनकम टैक्स रिटर्न तो भरनी ही पड़ेगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। अगर आप इंडिविजुअल या फिर ऐसे कोई इंडिविजुअल के अलावा कोई भी एंटिटी है जिनका इनकम के अंदर कोई लिमिट नहीं बताई गई है, और अगर या तो फिर आप कंपनी, एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म है, तो आपको हर साल रिटर्न भरना ही पड़ेगा। इसलिए ये क्राइटेरिया जरूर चेक करें। अगर आप रिटर्न नहीं भरते तो सबसे पहले तो आपको लेट फीस या पेनल्टी लगेगी। अगर आप पकड़े गए तो गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई एटलीस्ट 1000 रुपए तो मिनिमम की लेट फीस और पेनल्टी है। तो इट्स बेटर कि अगर जीरो भी है तो नील रिटर्न फाइल करें, बट अपनी रिटर्न जरूर फाइल करें। अब हम देख लेते हैं 7 टाइप्स के आईटीआर होते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ आईटीआर, आईटीआर 1 टू आईटीआर 7। उसके अलावा आईटीआर यू ये सब भी है, बट अभी हम आईटीआर 1 टू आईटीआर 7 पे ही फोकस करेंगे। आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न पे अभी हम फोकस नहीं करेंगे। किसी की क्वेरी हो उसको वो पूछ सकता है, बट अभी हम उसको लेंगे नहीं। फिर रूल 12 है जो बताता है कि इनकम टैक्स रिटर्न किसको भरना है, कौन से आईटीआर फॉर्म होते हैं। और आजकल जैसा कि हमको पता है कि मोस्टली जो सारे आईटीआर फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू भरे जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पता नहीं, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना कि कौन सा आईटीआर चूज करना है। आपको खाली सोर्सेज ऑफ इनकम डालने हैं और वो सॉफ्टवेयर खुद चूज कर लेगा कि आपको कौन सा आईटीआर प्रिपेयर करना है। तो पर मेरा फिर भी ये सलाह रहेगा कि एवरीवन शुड नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आईटीआर, क्योंकि कई बार सॉफ्टवेयर भी गलती कर सकता है, सॉफ्टवेयर को भी इंसान नहीं बनाया है। तो कोशिश करें कि आप एक आधा फॉर्म तो एटलीस्ट जो गवर्नमेंट की यूटिलिटी होती है उसमें खुद से भरे, ताकि आपको पता चले कि कौन से टाइप के आईटीआर होते हैं, उसके अंदर किस किस को वो आईटीआर लागू होते हैं, किसको नहीं होते, एंड एक्चुअल में गवर्नमेंट अपनी यूटिलिटी में क्या मांगता है डेटा, रादर देन जस्ट फाइलिंग विद अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपका काम जरूर आसान करता है, बट सॉफ्टवेयर का यूज पहले करने के पहले अपना खुद से वो रिटर्न की यूटिलिटी यूज करें। अब हम देख लेते हैं आईटीआर 1 क्या होता है। आईटीआर 1 इज द सबसे बेसिक आईटीआर, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सहज। सबसे बेसिक आईटीआर है, सबसे कम इंफॉर्मेशन वाला आईटीआर है, 3 या 4 पेज का आईटीआर है खाली ये। अब ये किनको भरना होता है, जिनकी यहाँ पे मैंने कहा है जिनकी सैलरी इनकम हो, ठीक है, जिनकी सैलरी इनकम हो, जिनका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो, फैमिली पेंशन हो, या फिर एग्रीकल्चर इनकम हो अप टू 5000। तो खाली ये लोग ही आईटीआर 1 भर पाएंगे। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अगर आप इंडिविजुअल हो जो अनकोटेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हो, या फिर अगर आप डायरेक्टर हो, तो आप आईटीआर 1 नहीं भर पाओगे, आपको आईटीआर 2 पे जाना पड़ेगा। तो आईटीआर 1 सबसे बेसिक रिटर्न है किसी इंडिविजुअल के लिए। अगर कोई इंसान है सिर्फ वो एक जगह सैलरीड एम्प्लॉय है, तो वो आईटीआर 1 भरे एंड ही इज फ्री, उसको और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आईटीआर 4 के अंदर। आईटीआर 1 जैसा हमने देखा सैलरीड एम्प्लॉयज या अदर सोर्सेज की इनकम वालों के लिए सबसे बेसिक आईटीआर है, उसी तरीके से आईटीआर 4 है वो अगर कोई छोटा बिजनेसमैन है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, या फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की समझ नहीं आती कैसे करना चाहिए, उसका टर्नओवर केवल 2 करोड़ तक का है। इस साल एक अमेंडमेंट आया था जहां पे उस 2 करोड़ की लिमिट को 3 करोड़ कर दिया गया था विद सम कंडीशंस। बट अभी जिस साल का आप रिटर्न भरेंगे उसमें तो 2 करोड़ ही लिमिट है, जो टर्नओवर की लिमिट है। 44 एडी के लिए मैं कह रहा हूँ, और 44 एडी ए जो दूसरा सेक्शन है प्रोफेशनल्स के लिए, उसके अंदर लिमिट है 50 लैक्स की। तो ये जो आईटीआर 4 है सुगम, ये उन लोगों को लगता है, आप ये मानिए कि आईटीआर 1 आपने उठा लिया जो सबसे बेसिक रिटर्न था, उसके अंदर खाली आपने एक इंग्रेडिएंट और डाल दिया विच इज 44 एडी या फिर 44 एडी ए की इनकम। अगर आपने ये एक चीज और ऐड कर दी तो आपका आईटीआर 4 तैयार हो गया। जिसका मतलब क्या है कि अगर आप खाली एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, या फिर कोई प्रोफेशन आप कर रहे हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, और आपका जो रिसीट्स है वो 50 लाख से नीचे है, तब आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो। आईटीआर 4 क्या बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, आप एक मिनिमम प्रॉफिट दिखा दो, बट अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट उससे ज्यादा है तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना है। सो आपको डिसाइड करना है व्हाट इज योर एक्चुअल प्रॉफिट, व्हाट इज योर मिनिमम प्रॉफिट, और उन दोनों में से जो हायर होगा उसको आपको दिखा के अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है।
अब ये कौन कौन नहीं भर सकता? अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, अगर आप अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्ड करते हो, अगर आप आउटसाइड इंडिया से इनकम अर्न कर रहे हो, अगर आपका 194N जो कि ये कहता है कि अगर आप एक सीमित अमाउंट के ऊपर विड्रॉ करते हो बैंकों से तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर आपका ऐसा कोई टीडीएस कटा है सेक्शन 194N के अंदर तो आप ITR 4 नहीं भर सकते। अगर आपका 5,000 से ज्यादा का एग्रीकल्चर इनकम है तो आप ITR 4 नहीं भर सकते। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो आप ITR 4 नहीं भर सकते। तो ITR 4 को हम कंपेयर कर सकते हैं ITR 1 के साथ। ITR 1 के अंदर आप 44AD और 44ADA की इनकम या 44AE की इनकम ऐड कर दें तो आपका ITR 4 बन जाएगा। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये कौन कौन इसका ले सकता है। जो इंसान 44AD और 44ADA और 44AE भर सकता है वही इंसान ITR 4 भर सकता है। इसका मतलब कि LLP ITR 4 नहीं भर सकता। अगर कोई LLP बिजनेस या प्रोफेशन रन कर रहा है तो वो ITR 4 का बेनिफिट नहीं ले सकता, या फिर एक कंपनी भी ITR 4 का बेनिफिट नहीं ले सकती। इसका मतलब कि अगर कोई कंपनी कोई छोटा बिजनेस कर रही है तो वो भी ITR 4 नहीं भर पाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ITR 2 के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा ITR 1 का बड़ा भाई है ITR 2। आपका ITR 1 कहता था कि सबसे बेसिक चीजें ले लो, सैलरी इनकम, एक हाउस से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम, बहुत ही बेसिक चीजें ले लो। पर क्या हुआ कि कोई एक एम्प्लॉय आया जो बोलता है कि भाई मैंने तो शेयर में भी इन्वेस्ट किया है, मेरी सैलरी भी 60 लाख रुपए है और मैं तो नॉन रेसिडेंट भी हूँ। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि आपके पास और कंडीशंस आ गई अदर देन योर सैलरी इनकम, दैट मीन्स यू बिकम एन ITR 2 एलिजिबल SSC। मतलब आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए केवल। अगर जो इंसान बिजनेस नहीं करता, जो इंसान खाली सैलरीड एम्प्लॉय है, वो शेयर मार्केट से भी कमाता है, वो हाउस प्रॉपर्टी के रेंटल से भी कमाता है, सो ITR 2 कैन बी कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एन इंडिविजुअल इफ दे आर नॉट हैविंग अ बिजनेस। ये हमको समझना है कि ITR 2 इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल, या इट्स द बिगेस्ट रिटर्न अगर आपका पास बिजनेस इनकम नहीं है तो। और नॉन रेसिडेंट्स के लिए तो ये पहली रिटर्न होती है, बिकॉज नॉन रेसिडेंट्स या RNOR जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स होते हैं इनकम टैक्स के अंदर, उन लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो ITR 1 भर पाए। ठीक है, तो ITR 1 हो गई बेसिक रिटर्न आपकी सैलरी की, ITR 4 हो गई बेसिक रिटर्न आपके प्रिजम्पटिव बिजनेस की, और ITR 2 हो गई बिगेस्ट रिटर्न फॉर एन इंडिविजुअल अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे तो। इस तरीके से हमको इसको याद रखना है। अब ITR 3 हो गई ITR 4 का बड़ा भाई। मतलब ITR 4 क्या कहता था कि अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो, 44AD की बिजनेस और ये सब छोटा मोटा काम कर रहे हो, तो आप ITR 4 भर लो। बट अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो, मतलब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करते हो और साथ में आप कैपिटल गेन भी कमाते हो और आपका मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी भी है, तो आप ITR 3 भरो। मतलब जो ITR 2 कर रहा था ITR 1 के लिए, वही ITR 3 करेगा ITR 4 के लिए। मतलब अगर आप ITR 4 की कोई भी कंडीशन से बाहर होते हो पर आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको ITR 3 भरना पड़ेगा। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो बन के आती है वो ये बन के आती है यार, कि बोलते हैं ITR 3 भर रहे हो आप, मतलब कि इसके अंदर आपको पूरा P&L बैलेंस शीट भरने का ऑप्शन भी मिलता है, आप कैपिटल गेन भी अर्न कर रहे हो, आप नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हो। अब इसमें जो एक क्वेश्चन निकल के आता है जो बहुत लोग पूछते हैं, दैट इफ आई एम अर्निंग business, I am running a business, correct, and if I am earning capital gain also, I'll have to file ITR 3. Now जब मैं ITR 3 फाइल कर रहा हूँ तो उधर तो मेरे को पूरा P&L बैलेंस शीट भी दिया जा रहा है, बट वो चीज मेरे को ITR 4 में तो नहीं मिल रही थी। तो क्या मैं ITR 3 के अंदर अभी भी 44AD और 44ADA वाले बिजनेस का मैं डिस्क्लोजर कर सकता हूँ, या फिर मेरे को बैलेंस शीट और P&L फिल करना जरूरी होगा? मैं वेट करता हूँ, चैट में आप लोग आंसर कीजिए कि क्या एक पर्सन ITR 3 के अंदर 44AD और 44ADA की बिजनेस की इनकम डिस्क्लोज कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर उसको पूरा P&L बैलेंस शीट भरना पड़ेगा ITR 3 के अंदर। मैं चैट भी अब अंदर कर लेता हूँ। कई लोग कह रहे हैं 44AD कर सकते हैं, कई लोग ना भी कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं डिस्क्लोज कर सकते हैं, कई लोग कह रहे हैं फुल डिस्क्लोजर, पूरा बैलेंस शीट P&L भरना पड़ेगा, डिस्क्लोज कर सकते हैं, ITR में पूरा बैलेंस शीट देना पड़ेगा। ओके ओके, ओके। तो
काफी आंसर्स आ गए हैं। अभी जो मेरे को रेशियो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि 60% लोग कह रहे हैं कि आपको फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, आप 44 एडी नहीं ले पाओगे, आपको पूरा पीएनएल और पूरा बैलेंस शीट ही भरना पड़ेगा। और 40% या 45% हम कह सकते हैं, 55-45 का रेशियो ले लेते हैं, 45% लोग कह रहे हैं कि आप 44 एडी भर सकते हो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल फुल बैलेंस शीट और पीएनएल, पूरा डिस्क्लोजर करने का जरूरत नहीं है। नाउ एज पर माय ओपिनियन, आप 44 एडी की इनकम इसमें दिखा सकते हो, आपको पूरा बैलेंस शीट पूरा पीएनएल भरने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ यू गो बाय द फुल पीएनएल दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू इन द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ ITR 3, वहां पे एक कॉलम आता है, आई गेस कॉलम नंबर 64 या 65 रहता है पीएनएल का, जहां पे लिखा गया है इफ यू आर अर्निंग एनी इनकम अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तो आप उसका डिस्क्लोजर यहाँ कीजिए। सिमिलरली बैलेंस शीट में भी एक कॉलम दिया गया है जहां पे आप अपनी प्रिजम्पटिव इनकम का डिस्क्लोजर करेंगे। सो यस, इफ यू आर फाइलिंग ITR 3, अब क्या हो सकता है, कई लोग ऐसे भी होंगे, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल, ठीक है, मैं 44 ADA में अपनी रिटर्न भरने जाता हूँ, बट उसी साल मैंने कुछ शेयर्स में भी ट्रांजेक्शन कर लिया, जिसकी वजह से अब मैं ITR 4 नहीं भर सकता, अब मेरे को ITR 3 भरना पड़ेगा, बिकॉज ITR 4 के अंदर कैपिटल गेन की इनकम का डिस्क्लोजर ही नहीं है। सो व्हेन आई एम गोइंग टू ITR 3 बिकॉज मेरे को कैपिटल गेन हो गया, क्या इसका मतलब ये होता है कि अब मेरे को अपना पूरा पीएनएल बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज मेरा ITR 3 चूज करने का रीजन कुछ और था, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ माय बिजनेस, इट वाज बिकॉज ऑफ कैपिटल गेन, इसलिए मेरे को फुल पीएनएल बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ेगा, लीगली भी कोई मेरे को नहीं बोल सकता भरने को। इसके अंदर एक क्वेश्चन और उठ के आता है कि जब मैं ITR 3 भर रहा हूँ तो मेरे को पीएनएल बैलेंस शीट तो चलो मैंने पूरा प्रिपेयर भी कर लिया, तो क्या मेरे को पर्सनल बैलेंस शीट या पर्सनल पीएनएल भी देना पड़ेगा? माय ओपिनियन इन दैट वुड बी कि अगर आप ITR 3 का जो PDF फॉर्मेट जो गवर्नमेंट रिलीज करती है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उधर लिखा होता है पीएनएल ऑफ द बिजनेस, बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब आपको पर्सनल बैलेंस शीट या पर्सनल पीएनएल देने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी बिकॉज ऑफ एनी प्रैक्टिकल रीजंस आप देना चाहते हैं तो आप दोनों दे सकते हैं। हाउएवर गवर्नमेंट तो आपसे सिर्फ बिजनेस की बैलेंस शीट या बिजनेस की पीएनएल ही मांगता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ITR 5 पे। अब ITR 5, 6, 7 बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है। ITR 1 to 4 जो है वो केटर करते हैं मोस्टली इंडिविजुअल्स को, उसमें LLP भी एक दो जगह कवर हो जाएगी, सॉरी पार्टनरशिप फर्म, बट ITR 1 to 4 इज मेनली फॉर इंडिविजुअल्स। ITR 5 है जो AOP, LLP, पार्टनरशिप फर्म उन लोगों के लिए लगता है। सो इफ अ पार्टनरशिप फर्म ही इज हैविंग 44 AD का बिजनेस प्लस सम कैपिटल गेन, तो उनको ITR 5 भरना पड़ेगा। तो अगर खाली उनका 44 AD का इनकम होगा तो वो ITR 4 भरेंगे पार्टनरशिप फर्म, बट अगर उनका पार्टनरशिप फर्म का विद देयर 44 AD बिजनेस अगर उनका कैपिटल गेन भी होता है तो उनको ITR 5 फिल करना पड़ेगा। एज इंडिविजुअल्स डू कि अगर उनका 44 AD है तो वो ITR 4 भरते हैं, अगर कैपिटल गेन आ गया तो ITR 3 भरते हैं। उसी सिमिलर वे में ये होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ITR 6। ITR 6 हम सबको पता है, बहुत ही सिंपल चीज है। कंपनीज कोई भी हो, अगर वो एक ट्रस्ट नहीं है, मतलब ITR 7 भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, अगर वो कोई सेक्शन 8 कंपनी या सेक्शन 25 की जो पुरानी सेक्शन 25 उसमें कंपनी नहीं थी, तो उन लोगों को ITR 6 भरना पड़ेगा सारी कंपनियों के लिए, बीट प्राइवेट लिमिटेड, बीट पब्लिक लिमिटेड, बीट 1% कंपनी, कोई भी टाइप की कंपनी होगी उन लोगों के लिए ITR 6 है। अब हम ITR 7 देख लेते हैं। ITR 7 किनको लगेगा? ITR 7 लगेगा ट्रस्ट को, कोई भी टाइप की ट्रस्ट हो, मतलब पॉलिटिकल पार्टी हो वो भी एक तरीके की ट्रस्ट है, एक नॉर्मल जो आपकी ट्रस्ट होती है, जो आप लोग मंदिर देखते हैं, वो सब भी ITR 7 फाइल करते हैं, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन ले रखा होता है। अगर वो लोग इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं ले पा रहे, मतलब वो सेक्शन 12 जो इनकम टैक्स एक्ट का है उसके अंदर उन्होंने अपने आप को एज अ ट्रस्ट रजिस्टर नहीं किया है इनकम टैक्स के साथ, तो उस केस में उनको ITR 5, 6 या जो भी उनको लागू होता है वो भरना पड़ेगा। बट इफ दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स अंडर सेक्शन 12 और 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो उनको फिर ITR 7 भरना पड़ेगा, जिसके अंदर वो सारे इनकम टैक्स के जो एग्जेम्पशंस हैं, जो हम सुनते हैं कि ट्रस्टों को टैक्स नहीं पे करना पड़ता, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो लोग को टैक्स नहीं पे करना पड़ता, उनको खाली अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी होती है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केस में, तो इसलिए वो ITR 7 में फाइल करते हैं। जो लास्ट ITR होता है अपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ITR 7 जो इलेक्टोरल ट्रस्ट,
या फिर पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो नॉर्मल ट्रस्ट होती है 12A 12AB के अंदर, उन सबको ITR 7 फाइल करना होता है। अब ये तो हो गई सारे ITR की बात। अब हम आगे चल के देखते हैं कि इम्पोर्टेंट चीजें और क्या क्या होती है जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, या क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। TDS TCS ये सब काम अभी देखेंगे कि कैसे काम करता है और उसको कैसे हमको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी ध्यान रखना होता है जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। तो इसमें अभी हम ITR यू नहीं ले रहे, इसके अलावा हमने सातों ITR कवर किए हैं। अब हम बात करते हैं कि TDS क्या होता है। अब इधर जेठालाल उसको बोल रहा है अपने एम्प्लॉय को, बागा को, कि भाई तूने 6 लाख की इनकम कमाई है ड्यूरिंग द ईयर, अब क्योंकि ये 5 लाख से ऊपर है, तुम्हारा टैक्स लग रहा है, तो अब तुमको इसके ऊपर हम TDS कट करके आपकी सैलरी आपको देंगे। बागा बोल रहा है यार पगार तो आप बढ़ाते नहीं हो, ऊपर से आप TDS भी कट कर रहे हो, तो मेरा तो और नुकसान हो गया। अब नटू काका क्योंकि इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनको पता है कि भाई 6 लाख की पगार में तो क्या है, ATC का डिडक्शन दे दो 1.5 लाख रुपए का, और 50,000 तो मेरे को वैसे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही। तो वो बोलता है बागा बॉय आप ATC का डिडक्शन क्लेम करो और आपका TDS नहीं कटेगा। तो आपको भी ये समझना है कि TDS किसका कट रहा है, किसका TDS नहीं कटना चाहिए, कब आपकी सैलरी टैक्सेबल होगी, कब आपकी सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। बिकॉज बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हर जन से एक बेसिक डायरेक्ट टैक्स की नॉलेज तो दुनिया पूरी एक्सपेक्ट करती है, पता नहीं क्यों, बट पूरी दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि आपको बेसिक इनकम टैक्स तो आना ही चाहिए। इसलिए आपका जो भी एटलीस्ट सैलरी या बिजनेस के अंदर जो भी आपका इनकम टैक्स लगता है या जो प्रोविजंस लगते हैं, वो आपको बेसिक कुछ कुछ मालूम होने चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं कि अब जैसे बात हुई अपनी कि भाई बागा की तो TDS कटने वाली है, तो जब TDS कटेगा तो उसको क्या मिलेगा प्रूफ कि उसका TDS जमा हुआ है। तो इन दैट केस फॉर्म 16 दिया जाता है। कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय जिसके इनकम या जिसकी सैलरी के ऊपर TDS कट किया होगा उसके एम्प्लॉयर ने, वो उसको फॉर्म 16 देगा। अब फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट ए के अंदर आता है कि आपकी टोटल सैलरी कितनी थी टोटल, और आपकी उस टोटल सैलरी के ऊपर TDS कितना कट हुआ है, वो आता है पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी के अंदर क्या आता है कि आपकी जो सैलरी थी उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या थे, टोटल सैलरी का ब्रेकअप क्या था, और उस टोटल सैलरी के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो पार्ट ए टेल्स यू अबाउट द टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स। पार्ट बी ऑफ फॉर्म 16 टेल्स यू अबाउट कि वो इनकम कैसे कैलकुलेट हुई और उसके ऊपर टोटल टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ। ठीक है, नाउ दिस फॉर्म 16 इज अ प्रूफ दैट योर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर, और उसने गवर्नमेंट को जमा करा दिया है। तो आप जब रिटर्न भरेंगे तो आप उसकी क्रेडिट अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आपके एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 दे दिया, साइमल्टेनियसली अगर वो देता है या नहीं देता है, अगर उसने आपका TDS कट करके जमा करा दिया होगा गवर्नमेंट को, तो आपका एक फॉर्म 26AS होता है। कितने लोगों ने फॉर्म 26AS के बारे में सुना है? आप यस या नो के तरीके से जवाब दे सकते हैं। ओके, मेजोरिटी लोग यहाँ यस कह रहे हैं। अब कुछ 2 5 10 लोग जिन्होंने शायद नहीं सुना होगा 26AS के बारे में, क्योंकि हो सकता है वो किसी और फील्ड में अपनी आर्टिकलशिप कर रहे होंगे। तो 26AS क्या होता है, और वो कई टाइम थोड़े टाइम में वो हटने भी वाला 26AS, क्योंकि AS और TAS आ गया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो 26AS क्या था कि 26AS वो द स्टेटमेंट विच वाज जनरेटेड। जो लोग GST में काम करते हैं, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप इनकम टैक्स में मेजोरिटी लोग काम नहीं करोगे तो ऑडिट या GST में काम कर रहे होंगे, या किसी और डिपार्टमेंट में हो सकता है कर रहे हो, बट GST तो मोस्ट ऑफ लोगों ने सुना ही होगा। तो GST के अंदर जैसे GST 2B या 2A होता है जिसके अंदर आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो दिखता है, उसी तरीके से इनकम टैक्स के अंदर फॉर्म 26AS होता है जिसके अंदर आपका TDS का जो क्रेडिट होता है वो दिखता है। तो किसी ने भी अगर आपका TDS कट किया होगा, या फिर अगर आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भराया होगा खुद से, तो वो सारी चीजें मतलब आपका A to Z टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को किसी भी फॉर्म में हुआ होगा, तो वो आपके फॉर्म 26AS में दिखेगा। एज ऑन डेट उन्होंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स को हटा दिया है 26AS में, बट पहले 26AS वाज द होल एंड सोल स्टेटमेंट, जहां पे आपका कहीं भी टैक्स कटा हो तो वो सारा का सारा आपके 26AS में आता था। तो इस तरीके का कुछ पार्ट है होता है फॉर्म 16 का। ये गवर्नमेंट का पूरा आपका
लगा होता है जिससे दिखता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है ऊपर आपके टॉप में, यहाँ पे फिर आपको ट्रेसिस का एक लोगो दिख जाता है, तो इससे पता चलता है कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट से जनरेटेड फॉर्म 16 है और इसके बेस पे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं किसी सैलरीड एम्प्लॉय का। तो अगर आपको किसी सैलरीड एम्प्लॉय बोलता है कि मेरे को मेरा रिटर्न भरवाना है, आप केवल उससे फॉर्म 16 का पार्ट ए और पार्ट बी मंगवाइए और साथ में अगर कोई एनेक्सर दिया हो कंपनी ने तो वो एनेक्सर मंगवा लीजिए और उससे आप उसका पूरा इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। एंड एज ऑन डेट टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अगर किसी ने फॉर्म 16 करेक्ट भरा होगा तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स की वेबसाइट पे प्रीफिल्ड आ जाएगा। एंड कई सारे सॉफ्टवेयर ने भी ये फैसिलिटी दे दी है कि अगर आप फॉर्म 16 उनके सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे तो वो अपना आईटीआर पूरी तरीके से खुद ही प्रिपेयर कर लेगा। तो कई जगह ये फैसिलिटी आ चुकी है कि आपका रिटर्न खुद प्रिपेयर होने लग जाएगा। तो ऐसी इसी तरीके से अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो आप फॉर्म 16 सीधा अपलोड करें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर और वो खुद से खुद पूरी आईटीआर प्रिपेयर कर देगा इफ यू आर ओनली अर्निंग फ्रॉम सैलरी। अब हम आगे चलते हैं, व्हाट इज फॉर्म 16A। जैसे कि हमने बात की कि जो फॉर्म 16 है दैट इज फॉर सैलरीड एम्प्लॉय, उसी तरीके से फॉर्म 16A होता है फॉर नॉन सैलरीड एम्प्लॉय। क्योंकि हमको पता है टीडीएस खाली सैलरी पे नहीं कटता, अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो उसके ऊपर टीडीएस कटता है, अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस दे रहे हो उसके ऊपर टीडीएस कटता है, अगर आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो उसके ऊपर टीडीएस कट रहा है, आप ब्रोकरेज अर्न कर रहे हो उसके ऊपर टीडीएस कटता है। तो अदर देन सैलरी जितने भी आपके टीडीएस कटते हैं उन लोगों के लिए फॉर्म 16A जनरेट होता है और उनको फॉर्म 16A दिया जाता है टू डिस्क्लोज कि उनका कितना टीडीएस कटा है, किस अमाउंट पे टीडीएस कटा है, एंड इट इज अ प्रूफ फॉर्म 16A दैट योर टीडीएस हैज बीन डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। जो लास्ट डेट था टीडीएस रिटर्न फाइल करने का फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 दैट वाज 31st ऑफ मई 2023। दैट मीन्स उसके 5 या 10 दिन के अंदर आपके 26 एएस में या एएस में सारे टीडीएस दिखने लग जाएंगे। इसीलिए भले ही आपका 1 जून को या 2 जून को आईटीआर फॉर्म सारे निकल गए थे भरने के लिए, बट जिन लोगों का टीडीएस कटा था उन लोगों के एम्प्लॉयर्स ने या डिडक्टर्स ने मोस्टली लास्ट डे पे ही अपना टीडीएस रिटर्न फाइनल फाइल किया होगा। एंड इसी वजह से आपको 26 एएस में वो सारी एंट्रियां दिखने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा। तो अभी आज की डेट में एज ऑन डेट आई बिलीव आपको सारे टीडीएस का क्रेडिट अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखने लग जाएगा। तो अगर आज आप किसी का रिटर्न भरना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम यही करना चाहिए हमको कि पहले 26 एएस का डेटा इंपोर्ट करें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर और फिर पहले देखें कि किस किस इनकम पे उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और क्या उतनी इनकम हमने ऑलरेडी या फिर हमारे क्लाइंट ने उतनी इनकम का हमको डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है। अगर वो कर दिया है तो हम प्रोसीड कर सकते हैं उसकी रिटर्न प्रिपरेशन में, अगर नहीं किया है तो पहले हम उससे डेटा मांगे कि भाई ये जो इनकम के ऊपर टीडीएस आपकी कटा है इसका हमको डिस्क्लोजर दें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये फॉर्म 16A का है डिस्क्लोजर। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो फॉर्म 16 जैसा मैंने कहा एम्प्लॉइज के ऊपर लगता है और फॉर्म 16A जो लगता है वो लगता है अदर देन एम्प्लॉइज के ऊपर अगर टीडीएस कट करा हो तो। अब जो एक सैलरी रिटर्न के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है वो है एचआरए का, हाउ टू कैलकुलेट दी एचआरए। क्योंकि अब हमको पता है कि ज्यादा कोई डिडक्शंस बचे नहीं है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए, तो वैसे ही कोई खास डिडक्शन नहीं होते हैं। आफ्टर द न्यू रेजिम विच हैज बीन इंट्रोड्यूस उसके बाद तो कोई ज्यादा डिडक्शंस मिलने भी नहीं वाले। तो एचआरए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन, हाउस रेंट अलाउंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज टू रिड्यूस देयर टैक्स लायबिलिटी ऑन द सैलरी इनकम। तो इसके अंदर क्या कहा गया है, एचआरए के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहा हो और अगर उसका एम्प्लॉयर उसको एचआरए दे रहा हो हाउस रेंट अलाउंस एज अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, तो वो एक सर्टेन अमाउंट है जो अपने सैलरी इनकम में से कम कर सकता है और उसके ऊपर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ही इज पेइंग रेंट। तो दैट मीन्स रेंट को उसका खर्चा मान लिया जाएगा फ्रॉम द सैलरी इनकम और उसको उसकी सैलरी में से रिड्यूस कर दिया जाएगा, उसको एग्जेम्प्ट मान लिया जाएगा सेक्शन 10 के अंडर। तो क्योंकि उसको सेक्शन 10 के अंडर एग्जेम्प्ट मान लिया जाता है इसलिए उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये एचआरए कैलकुलेट कैसे होगा, तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एचआरए आपकी सैलरी का पार्ट होना चाहिए। कई जगह हो सकता है शायद कि सैलरी के अंदर एचआरए का कंपोनेंट ही ना हो तो आपको ये एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जब भी आप किसी को ये एग्जेम्पशन दे रहे हो पहले आप चेक करें कि उसके पास एचआरए का कंपोनेंट है या नहीं है उसकी सैलरी के अंदर, क्योंकि अगर वो नहीं है तो आप उसको एचआरए का बेनिफिट नहीं दे पाएंगे।
अब हम देख लेते हैं कि एचआरए कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। एचआरए कैलकुलेट करने के लिए आपको रेंट पेड चाहिए। इसमें से हो सकता है कि कुछ डिडक्शंस आपके एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 में ना दिए हो, क्योंकि आपने उसको कुछ उस टाइम रेलेवेंट प्रूफ ना दिए हो या आपने प्रूफ अपलोड करने में लेट कर दी हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एचआरए का अगर एग्जेम्पशन इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं है तो आप उसको अपने जो सॉरी अगर आप उसका एचआरए का बेनिफिट अगर फॉर्म 16A में नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न में भी नहीं देंगे। आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न में एचआरए का बेनिफिट जरूर दे सकते हैं जब वो रिटर्न भरवा रहा हो। तो आपको रेंट पेड चाहिए कि पूरे साल में उसने किसको रेंट पे किया है, उसका पैन नंबर क्या है जिसको रेंट पे किया गया है, सैलरी कितनी है उस पर्सन की, जिसके अंदर आपको ब्रेकअप चाहिए एवरी मंथ का कि बेसिक कितना है, डियरनेस अलाउंस कितना है, ठीक है, वो सब आपको कंपोनेंट्स चाहिए। उसके बेस पे आप एचआरए कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है कि वो किस सिटी में सिचुएटेड है जहां पे वो एचआरए क्लेम कर रहा है। बिकॉज अगर वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो आपको 50% तक मिल जाएगा एचआरए आपकी सैलरी का बेसिक प्लस डीए का। और अगर आप नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी आ जाती है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, ये 4 सिटी है आज की डेट में जहां तक मेरे को पता है कि जिनके ऊपर आपको 50% मिलता है। और इसके अलावा अगर जयपुर में कोई बैठा है तो उसको 40% ऑफ इट्स हिज सैलरी ही उसको एचआरए का बेनिफिट मिलेगा। आज क्योंकि अपने पास थोड़ा टाइम लिमिटेड है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ, बट अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो जरूर वो बाद में भी मुझसे पूछ सकता है। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके बेस पे आप एचआरए कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं एक्चुअल में एचआरए कैलकुलेट कैसे होता है। एचआरए सेक्शन 10 क्लॉज 13A में बताया गया है कि आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। उधर ही मेथड भी बताया गया है कि आपको एचआरए कैलकुलेट कैसे करना है। इसमें 3 चीजें होती है जो आपको कैलकुलेट करनी है। उन तीनों में से जो भी लोअर होगा उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे पहला तो सबसे इजी होता है कि आपको आपके एम्प्लॉयर ने कितना एचआरए दिया है आपकी सैलरी कंपोनेंट में। तो पूरे साल में आपको जितना एचआरए मिला होगा वो आपको सबसे पहले टोटल करना है। तो इस केस में अपना टोटल एचआरए था 1,80,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना है कि आपके एम्प्लॉय ने टोटल रेंट कितना पे किया ड्यूरिंग द ईयर। तो लेट्स अज्यूम उसने जो रेंट पे किया था वो था 16,000 पर मंथ का इस केस में। अब उसमें से माइनस करना है 10% ऑफ दी सैलरी, मतलब 10% ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस आपको माइनस करना है फ्रॉम दिस 16,000 का रेंट पेड। तो वो आ रहा है 1,36,800 रुपए। और नेक्स्ट आपको देखना है कि 40% ऑफ द सैलरी देखना है, क्योंकि ये कानपुर में सिचुएटेड है तो आपको 40% देखना है बेसिक प्लस डीए का। उसके हिसाब से आपका एचआरए कितना बनता है, तो वो बनता है 2,20,800 रुपए। अब इन तीनों में से ये 3 चीज आपको देखनी है। इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उस लोअर को आपको बेनिफिट देना है। मतलब कि जो लोअर है वो आपका हो जाएगा 1,36,800 और उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी का जो एचआरए आ रहा है 43,200 वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी उस एम्प्लॉय की। तो इस तरीके से आई बिलीव अब लोगों को एचआरए क्लियर हो गया होगा कि उनको कैसे कैलकुलेट करना है। जब उनके पास कोई डेटा आएगा तो उनको पहले तो सैलरी स्लिप्स मंगानी है 12 महीनों की उस एम्प्लॉय की, फिर उसके साथ उसको मंगवाना है, उसके अंदर टोटल करना है कितना एचआरए उसको मिला। और उस सैलरी स्लिप से उसको 2 इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एक तो एक्चुअल एचआरए कितना मिला और 40% कितना बनता था उसका अगर वो बेसिक और डीए मिल जाएगा तो। और तीसरा उनको मंगवाना है एक्चुअल रेंट पेड, मतलब आपने पूरे साल में कितना रेंट पे किया है किसी पर्सन को वो मंगवाना है और उस पर्सन का पैन मंगवाना है। इतनी चीजें आप मंगवाएंगे तो आप एचआरए कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये था मेजोरिटी के एग्जेम्पशंस क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कौन से टाइप के डिडक्शंस होते हैं और उनको लेते टाइम क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहला सबसे बड़ा डिडक्शन सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के अंदर इतने सारे डिडक्शंस हैं कि कई बार तो हम खुद कंफ्यूज होते हैं कि ये डिडक्शन 80C में कवर हो भी रहा है आज की डेट में या नहीं हो रहा है। इतने सारे डिडक्शंस इन्होंने डाल दिए ऑलरेडी 80C के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि भाई 80C का जो डिडक्शन है वो मैक्सिमम आपको 1.5 लाख तक मिल सकता है। अब इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट जो डिडक्शन है जो मोस्ट ऑफ लोग लेते हैं वो कौन से हैं। एक तो उन्होंने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये एक सेविंग स्कीम है। जैसे यूएस के अंदर सोशल सिक्योरिटी होती है वैसे इंडिया में पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जिसके अंदर अगर आप इस स्कीम के अंदर पैसा डालते हो तो एक तो पहली बात आप इसके अंदर सालाना 1.5 लाख से ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते जो 80C की लिमिट है। मतलब आप 1.5 लाख रुपए ही पीपीएफ के अंदर डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते।
ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप कमाएंगे पीपीएफ के अंदर वो भी एग्जेम्प्ट होगा, और मेच्योरिटी में जो आपको इसका पैसा मिलेगा पीपीएफ का वो भी एग्जेम्प्ट होगा। मतलब ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको पैसा डालने पे भी डिडक्शन मिलता है और पैसा कमाने पे कोई टैक्स भी नहीं लगता। तो दिस इज अ वेरी गुड स्कीम इफ समवन वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाइए किसी भी बैंक में जाके, और अपना पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख या उससे कम भी जमा कर सकते हैं, बट 1.5 लाख आप जमा कीजिए और आपको सारी इनकम उसके ऊपर जो होगी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसी तरीके से ईपीएफ आता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसी तरीके से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी आता है, फिक्स डिपॉजिट भी आता है। मतलब अगर आप कोई बैंक के साथ 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी करेंगे तो वो भी आपको टैक्स फ्री मानी जाएगी। मतलब अगर आपने 5 साल के लिए एफडी कर ली तो उसमें जितना आप पैसा डाले होंगे उस एफडी के अंदर वो आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80C के अंदर, बट इट विल बी मैक्सिमम ओनली अप टू 1.5 lakhs। और ये न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ओल्ड रेजिम के अंदर आपको ये डिडक्शन मिलेगा। न्यू रेजिम मतलब 115 बीएसी, शायद इनको ना पता हो, एक सेक्शन 115 बीएसी आ गया है इंडिविजुअल्स के लिए, जिसके अंदर आपको डिडक्शंस कोई नहीं मिलेंगे बट टैक्स रेट कम कर दी गई है आपके लिए। तो ये हो गया आपका 80C फिक्स डिपॉजिट का एक पॉइंट हमने कवर कर लिया, पीपीएफ का पॉइंट कवर कर लिया, ईपीएफ का पॉइंट कवर किया है, एनएससी किया है। उसके अलावा अगर आपने कोई होम लोन लिया हो, अगर आप उस होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट कर रहे हो तो उसको भी आप 80C में एज अ डिडक्शन ले पाएंगे, कोई दिक्कत आपको उसके अंदर नहीं होगी। आपका टैक्सेबल इनकम में से वो अमाउंट कम हो जाएगा। अब देखते हैं आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके 80C का, वो आप किन किन के लिए ले सकते हैं और उसके अंदर कितनी लिमिट का होगा तो आपको 80C का डिडक्शन मिलेगा। मतलब कि अगर आपका जो पॉलिसी है वो 2012 के बाद इशू हुआ होगा, तो अगर आपका जो पॉलिसी का प्रीमियम है फॉर 1 ईयर, इफ इट इज लेस देन 10% ऑफ द टोटल सम अश्योर्ड, तो ही आपको उसका 80C में डिडक्शन मिलेगा। सो हम मान लेते हैं आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी है और आपका सालाना जो प्रीमियम जा रहा है वो आप मान लेते हैं 11 लाख रुपए जा रहा है, तो उस केस के अंदर आपको उस पॉलिसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर अगर आपका जो प्रीमियम है वो 9 लाख रुपए है सालाना, तो फिर आपको उस पॉलिसी का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। मतलब कि आपका प्रीमियम जो है इट शुड बी लेस देन 10% ऑफ द सम अश्योर्ड ऑफ द पॉलिसी। करेक्ट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पर अगर कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन है उन लोगों के लिए 10% की लिमिट 15% कर दी जाएगी। तो नॉर्मली आपको चेक करना है कि 10% से कम होना चाहिए प्रीमियम आपका पूरे सम अश्योर्ड का, तो ही आपको 80C में उसका डिडक्शन मिलेगा। और जो पॉलिसी 80C में एग्जेम्प्ट होगी, मतलब जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगी, वही पॉलिसी सेक्शन 1010D, जो कि इनकम टैक्स का एक और प्रोविजन है जहां पे इस पॉलिसी के मैच्योरिटी में जो प्रोसीड्स आपको मिलती है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, वो उन्हीं पॉलिसी के लिए होगी जिन पॉलिसी 80C में डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। तो मतलब अगर आपकी पॉलिसी 80C में डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है तो उस पॉलिसी का प्रोसीड्स आपके 1010D में एग्जेम्प्ट भी नहीं होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आपके पास कोई पॉलिसी लेके आए कि सर ये तो मेरी मैच्योर्ड हुई है और ये तो एग्जेम्प्ट ही है, आप तो इसको एग्जेम्प्ट मान ले। बट हमको ऐसे एग्जेम्प्ट नहीं मानना किसी पॉलिसी को। आप उनको कहिए कि हमको पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, उसके अंदर हमको ये जानना है कि आपका पॉलिसी का जो प्रीमियम था वो कितना था और पॉलिसी की जो सम अश्योर्ड था वो कितना था। उसके बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि ये पॉलिसी एग्जेम्प्ट थी या नहीं थी और किस दिन ये पॉलिसी इशू हुई थी। इसके पहले जो पॉलिसीज इशू हुई थी 2012 के पहले और वो सब, तब लिमिट्स और थी। यू कैन चेक सेक्शन 80C टू फाइंड आउट कि उस टाइम क्या लिमिट्स थी और उसके बेस पे आप डिसाइड करें कि ये एग्जेम्प्ट होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं 80D, विच इज ऑल्सो वेरी कॉमन प्रोविजन विच इज इन रिलेशन टू दी मेडिक्लेम और मेडिकल इंश्योरेंस दैट इज पेड टू द गवर्नमेंट, या फिर कोई भी और मेडिकल इंश्योरेंस की जो बॉडी होती है उनको अगर आप देते हैं तो उसके ऊपर आपको 80D का डिडक्शन मिलता है। अब 80D का डिडक्शन क्या कहता है कि भाई अगर आपने मेडिक्लेम या मेडिकल प्रीमियम पे किया है खुद के लिए या खुद के स्पाउस के लिए, खुद के डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए, तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा 80D के अंदर। करेक्ट, ये जो भी डिडक्शंस 80C के हैं, 80D के हैं, ये सारे डिडक्शंस आपको ये समझना है कि दिस ऑल आर इन्वेस्टमेंट्स दैट यू आर मेकिंग। सो इन्वेस्टमेंट्स का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा व्हेन यू आर एक्चुअली मेकिंग द पेमेंट। तो आप जैसे देखेंगे ना इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट पेड, तो हर जगह ऐसा पेड वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई आपका
क्लाइंट लाके दे दे कि भाई ये देखो रिसीट, मैं इसको पे कर दूंगा, अभी तक मेरा ड्यू चल रहा है, मैंने इसको पे नहीं किया बट मैं इसको कुछ टाइम में पे कर दूंगा, आप तो इसका डिडक्शन ले लो। तो आपको डिडक्शन नहीं लेना है जब तक कि कोई डिडक्शन पे ना हो जाए। ड्यू हुआ हुआ कोई भी जो पेमेंट होता है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। जब तक वो पेमेंट ड्यू होगा तभी उसका डिडक्शन मिलेगा। तो ये एक टेबल है जिसके अंदर आपको लिमिट समझाई गई है कि डिडक्शन जो आपको मिलेगा वो कितने लिमिट का मिलेगा। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे इंडिविजुअल, सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए उसको मिलेगा 25,000 इफ द एज इज बिलो 60 एंड 50,000 इफ द एज इज अबाउट 60। मतलब वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, और अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। अब इसके अलावा पेरेंट्स के केस में भी सिमिलर है। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000, नॉन सीनियर सिटीजन है तो 25,000। अब इसमें क्वेश्चन निकल के आता है कि किसी के पेरेंट्स अगर नॉन रेसिडेंट्स हैं तो क्या होगा। तो उस केस में आपको जो 50,000 वाला बेनिफिट है, इवन इफ दे आर सीनियर सिटीजन, तो आपको 50,000 वाली लिमिट नहीं लगेगी, आपको 25,000 की ही लिमिट लगेगी। दैट मीन्स खाली सीनियर सिटीजन होना इंपॉर्टेंट नहीं है। द पर्सन शुड बी अ सीनियर सिटीजन एज वेल एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तभी उनको 50,000 की लिमिट मिलेगी। सो लेट्स अज्यूम कोई इंडिविजुअल भी है, करेक्ट, लेट्स अज्यूम विजय माल्या आ गया आज इंडिया में। विजय माल्या आउटसाइड इंडिया रहता है, नॉन रेसिडेंट है। अब वो इंडिया आता है, उसकी टैक्सेबल इनकम आ रही है इंडिया में, वो बोलता है कि मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ 50,000 का और मेरे को उसका डिडक्शन दे दो 80D के अंदर। तो उसको 25,000 का ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि उसका जो वो सीनियर सिटीजन तो है बट ही इज नॉट अ सीनियर सिटीजन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, क्योंकि वो इंडिया में 182 डेज या जो भी क्राइटेरियाज है रेसिडेंट बनने के लिए वो उसने फुलफिल नहीं किए हैं। इसलिए कोई भी नॉन रेसिडेंट को, वो भले पेरेंट्स हो या खुद सेल्फ हो, उसको 25,000 ही डिडक्शन मिलेगा इफ दे आर नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम डिडक्शंस देख लेते हैं। 80DD which is in relation to the deduction of medical treatment and maintenance of dependent handicapped persons। तो अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 का डिडक्शन मिल जाता है, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाता है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है सेक्शन 80DD का, कि इसके अंदर क्या कहा गया है कि आप खर्चा कितना भी करें, आपको जो डिडक्शन है वो इतना मिल ही जाएगा। मतलब अगर आपका खर्चा शायद इससे कम भी हो रहा होगा तो भी आपको 75,000 का डिडक्शन मिल सकता है। तो हमने बात की सेक्शन 80C की, जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने पे पीपीएफ के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, हाउस के रीपेमेंट के अंदर उसका डिडक्शन मिलता है। 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलता है। 80DD के अंदर आप अगर किसी का ट्रीटमेंट या मेंटेनेंस करवा रहे हो पर हैंडीकैप पर्सन, तो उसका डिडक्शन मिलता है। अब चलते हैं आगे सेक्शन 80E के अंदर। अब अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, इसमें भी लिस्टेड है कौन सी हायर एजुकेशन कवर होती है। आई थिंक इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंक्लूडेड नहीं है हायर एजुकेशन के लिए। तो अगर आप और किसी हायर एजुकेशन के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या चैरिटेबल ट्रस्ट से, किसके लिए लोन ले रहे हैं आप? सेल्फ के लिए लोन ले रहे हैं, स्पाउस के लिए लोन ले रहे हैं, चिल्ड्रंस के लिए लोन ले रहे हैं, या फिर किसी लीगल गार्जियन के लिए आप आपने किसी ऐसे के लिए लोन ले रहे हैं जिसके आप लीगल गार्जियन हैं, तो फिर आप उसका 80E के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। अब आप 80E के अंदर डिडक्शन लेंगे किस चीज का? आप 80E के अंदर डिडक्शन लेंगे इंटरेस्ट का, जो आप पे कर रहे हैं उस लोन पे जो आपने एजुकेशन के लिए लिया है। अब क्या होता है, बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, बहुत सारे आजकल बच्चे, हमको पता है, कनाडा जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं टू स्टडी कंप्यूटर्स, टू स्टडी इंजीनियरिंग। तो वो लोग क्या करते हैं, कई बार एजुकेशन लोन लेते हैं और फिर उस एजुकेशन लोन को रीपे करते हैं, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा सेक्शन 80E के अंदर। और इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, आपका जितना भी इंटरेस्ट होगा उतने का पूरे का आपको डिडक्शन मिलेगा। और जनरली एजुकेशन लोन के अंदर इंटरेस्ट बहुत कम होता है, पर जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा उतना आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। बट आपको ये इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलेगा ये खाली 8 सालों तक ही मिलेगा। मतलब जिस साल में आपने पहली बार वो लोन का रीपेमेंट करना शुरू किया होगा, उससे लेके आगे 8 सालों तक आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। अब आप उस 8 सालों के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरी इनकम तो बहुत कम आई है तो मैं आगे के सालों में उसका डिडक्शन लेना चाहूंगा, ऐसा नहीं होगा। जिस साल में आप पहली बार उसका रीपेमेंट करना चालू कर देंगे, उस साल से 8 साल के अंदर
डिडक्शन आपको उसका लेना ही पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट एक सेक्शन पे चलते हैं जो है 80G डोनेशन। आपके असेसी ने या आपके क्लाइंट ने डोनेशन कर दिया किसी ट्रस्ट को या पीएम केयर्स फंड में या सीएम केयर्स फंड में या फिर और किसी इंस्टीट्यूट को जो 80G के लिए एलिजिबल होती है, या किसी मंदिर में डोनेशन कर दिया जो कि 80G के लिए एलिजिबल है, तो उस केस में आपको 80G का डिडक्शन मिलेगा। अब इस 80G के डिडक्शन में आपको ध्यान रखना है 2-3 चीजें जो मैं बता दूंगा अभी यहाँ पे। एक तो आपके पास उस 80G के डोनेशन की रिसीट होनी चाहिए। आपको क्लाइंट से मांगना है कि अगर आपने 80G में इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरे को डोनेशन की रिसीट दिखाओ। उसके अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट का लिखा हुआ होना चाहिए कि वो ट्रस्ट जो है 80G के अंदर रजिस्टर्ड है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, और वो एलिजिबल है आपको डिडक्शन देने के लिए। जो नॉर्मल अपनी ट्रस्ट होती है अदर देन गवर्नमेंट ट्रस्ट, जो पब्लिक ट्रस्ट बनती है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, उस केस में क्या होता है कि आपको जनरली 50% ही डिडक्शन अलाउ होगा। मतलब कि आपने 100 रुपए दिए डोनेशन के अंदर, तो मोस्ट ऑफ केस में आपको 50 रुपए का ही डोनेशन अलाउ होगा। उसके अंदर भी एक कैपिंग होती है 10% ऑफ योर GTI। मतलब वो 50% विल बी एलिजिबल ओनली अप टू 50% ऑफ योर डोनेशन मेड। मतलब कि लेट्स से टेक एन एग्जांपल कि आपने डोनेशन किया लाख रुपए का, ठीक है, आपकी GTI आ रही है लेट्स से 7 लाख रुपए, ठीक है, तो आपको जो डिडक्शन अलाउ होगा वो होगा 10% ऑफ दिस GTI, दैट इज 70,000। 7 लाख का 10% इज 70,000, और 50% उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 50% तक के अमाउंट के जो आपने डोनेशन किया होगा उसका 50% तक अमाउंट, मतलब 50,000 का आपको डिडक्शन इसके अंदर एलिजिबल होगा। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो डिडक्शन अलाउ होगा वो 50% ऑफ द टोटल डोनेशन मेड उतने अमाउंट का ही एलिजिबल होगा। अगर आप नॉर्मल किसी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को करते हो तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आपके इनकम टैक्स एक्ट में भी ऐसी पूरी लिस्ट है कि आप किसको डोनेशन देंगे तो कितना डिडक्शन अलाउ होगा। नॉर्मली किसी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को विच इज अदर देन गवर्नमेंट ट्रस्ट, उन लोग के ऊपर 50% ही अलाउ होता है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर पीएम केयर्स फंड है, सीएम केयर्स फंड है, इन सबको 100% डिडक्शन अलाउ होता है। मतलब आपने जितना डोनेट किया होगा उतने पूरे का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पर इसमें एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि अगर उस पर्सन ने कैश में डोनेशन किया होगा, मतलब अगर 10,000 2,000 से ऊपर का अमाउंट कैश में डोनेशन में दिया होगा, जो रिसीट में लिखा होगा कि मोड ऑफ डोनेशन क्या था, तो अगर 2,000 से ऊपर का अमाउंट कैश में गया होगा तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ 2,000 तक का ही डिडक्शन आप ले पाएंगे, उससे ऊपर का डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। और इसमें जो लास्ट 2 सालों से एक अमेंडमेंट एक और आया है कि अगर कोई ट्रस्ट है वो 80G के डोनेशन एक्सेप्ट कर रही है तो उनको एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म 10BD। फॉर्म 10BD, वो फॉर्म जैसे ही वो फाइल करते हैं गवर्नमेंट के पास, उनको एक एक्नॉलेजमेंट निकल के आता है, एक सर्टिफिकेट निकल के आता है जो होता है सर्टिफिकेट इन फॉर्म 10BE। तो आपका जो क्लाइंट होगा जिसने डोनेशन किया होगा उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द चैरिटेबल ट्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 10BE। तो आप जब भी रिटर्न भर रहे हो और कोई बोले आपको कि हमने डोनेशन किया था, तो उनको बोलिएगा कि आप अपने जिस भी ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया था उसको बोलें कि आपको फॉर्म 10B इशू करें, तभी वो एक वैलिड डोनेशन माना जाएगा और आगे चल के इसको भी गवर्नमेंट प्रीफिल कर देगी। इसका मतलब कि जैसे ही आप डोनेशन देंगे उस ट्रस्ट को फॉर्म 10BD भरना पड़ेगा और उस 10BD के बेस पे आपके इनकम टैक्स में रिटर्न में अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा आपका डोनेशन का डिडक्शन। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं जो सैलरीड एम्प्लॉय बहुत लोग करते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देंगे। काफी नोटिस भी आई थी अभी इन पॉलिटिकल पार्टीज के रिलेशन में, तो उसके अंदर हम बात कर लेंगे कि भाई अगर एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे रहे हैं तो उनको 100% डिडक्शन मिलता है फ्रॉम देयर इनकम। और उसके अंदर आपको जो डोनेशन देना है वो किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को देना है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको 80GGC में डिडक्शन मिलेगा, अगर आप नॉन इंडिविजुअल हैं तो आपको 80GGB में डिडक्शन मिलेगा। तो ये सेक्शन था, ये भी डोनेशन का सेक्शन था, 80G भी डोनेशन का सेक्शन था और 80GGB और GGC भी डोनेशन का सेक्शन था, विच वॉज इन रिलेशन टू दी पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम एक और बात कर लेते हैं 80GG सेक्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो सैलरीड एम्प्लॉय बहुत यूज करते हैं। इसके अंदर क्या बोला गया है कि आप अगर
रेंट पे कर रहे हैं, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, जो आपको ध्यान हो तो हमने रेंट की बात की थी एचआरए के अंदर भी, इधर भी उसी रेंट की बात हो रही है कि अगर कोई पर्सन रेंट पे कर रहा है तो उसको उस रेंट पेमेंट का डिडक्शन मिलेगा, करेक्ट। तो अगर आप रेंट पे कर रहे हैं आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, बट कितने अमाउंट का मिलेगा, ये सेल्फ एम्प्लॉयड को भी मिल जाएगा, अगर आप सैलरीड हैं तो आपको भी ये डिडक्शन मिल जाएगा, और अगर आप खुद के लिए काम करते हैं, आप बिजनेस ओन करते हैं, तो भी आपको ये रेंट का डिडक्शन मिल जाएगा। माइंड यू कि ये रेंट जो मैं कह रहा हूँ ये आपकी शॉप का रेंट या ऐसा कोई रेंट नहीं है, वो तो आपको वैसे भी अपने बिजनेस इनकम के सामने डिडक्शन मिल ही जाता है बिजनेस हेड के अंदर, या आपका घर का रेंट हो सकता है या ऐसा कोई और रेंट हो सकता है जिसका आपको डिडक्शन और कहीं नहीं मिल रहा है, उस टाइप का रेंट है। अब यहाँ पे ये कहा गया है अंडर दिस सेक्शन यू कैन क्लेम द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग बिलो एप्लीकेबल अमाउंट्स, 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई। अब इनकी लिमिट्स को आपको देख के शायद कुछ एचआरए का थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, वहां भी सेम बात हुई थी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी था वहां पे। यहाँ पे क्योंकि इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू जी सैलरीड एम्प्लॉय, तो इधर एडजस्टेड जीटीआई की बात भी हो रही है, और इसके साथ इधर एक और बात हो रही है कि 5,000 पर मंथ का मिलेगा, और इधर एक और बोला जा रहा है कि 25% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई, इसका डिडक्शन आपको मिल सकता है। अब इसके अंदर एडजस्टेड जीटीआई क्या होता है, जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से आपके जितने भी और डिडक्शन थे चैप्टर 6 से के, जो अभी अपन ने बात की 80C, 80D, 80DD, 80E, तो 80G को छोड़ के, डबल जी को छोड़ के जितने भी और आपके डिडक्शन थे उनको माइनस कर देते हैं अगर अपन ग्रॉस टोटल इनकम से, तो आपकी एडजस्टेड जीटीआई निकल के आती है। तो अगर आपका 25% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई है तो आपको उतना, इसमें से जो भी लिस्ट होगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80GG के अंदर, और इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर। अब अपना क्वेश्चन ये निकल के आता है, आप वापस पोल ले सकते हैं, स्कैन कीजिएगा क्यूआर कोड। अब इसमें अपना क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या एक सैलरीड एम्प्लॉय एचआरए प्लस 80GG दोनों का बेनिफिट ले सकता है क्या। जैसा कि आपको ध्यान हो पिछले वाले अपने क्वेश्चन में जो अपन ने, जहां अपन ने एचआरए कैलकुलेट किया था, वहां पे ये कहा गया था कि आपको जो रेंट पेड माइनस 10%, मतलब आपका बेसिक जो सैलरी था उसका 10% माइनस किया जाएगा। दैट मीन्स जो आपने टोटल रेंट पे किया था उधर, उसका आपको पूरा डिडक्शन नहीं मिला था। तो क्या आप 80GG वापस ले पाएंगे क्या, उस जो बैलेंस अमाउंट था उसका। इसका ये पोल है, तो आप जरूर स्कैन कीजिए एंड पोल देखते हैं कितने लोगों का क्या आंसर आता है। 8 लोगों ने अभी तक आंसर दिया है। फटाफट स्कैन कर सकते हैं, इसमें तो किसी को शंका भी होनी होनी नहीं चाहिए कि भाई आप आंसर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। एनोनिमस है, ज्यादा किसी को पता भी नहीं चलेगा किसने क्या आंसर दिया। 21 लोगों ने अभी तक आंसर दिया है। कई लोग चैट में भी शायद आंसर दे रहे हैं, बट मैं कहूंगा कि प्लीज आप इसको स्कैन करके ही आंसर दे, ताकि सबको इंटरेक्टिव लगे और सबको आंसर पता चले कि मैक्सिमम लोगों की थिंकिंग कहाँ जा रही है, वेदर इट इज अ यस और वेदर इट इज अ नो। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोग इधर ही आंसर दें, आप अपने थॉट्स चैट में भी डाल सकते हैं, बट पहले आप इसको भी जरूर आंसर करें। आई एम वेटिंग फॉर 50 मार्क की, अगर हम 50 के मार्क तक क्रॉस कर जाएं कि 50 लोग आंसर दे दें पोल के अंदर, तो हमको एक अच्छा सैंपल मिल जाएगा जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों का क्या सोचना है। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं स्कैन नहीं हो रहा ड्यू टू टेक्निकल इशू, तो वो लोग जरूर चैट में आंसर दे, बट आई थिंक मैक्सिमम लोगों का हो जाएगा स्कैन। तो आप कोशिश करें, अगर ज्यादा लोगों को इशू आ रहा है तो हो सकता है मैं कोई और तरीके से भी करूं, बट आप अभी तो कोशिश करें कि आप स्कैन करके ही आंसर दें। 32 लोगों ने आंसर दे दिया है, चलिए 40 कर लेते हैं, एक बार 40 हो जाए तो फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं।
चलिए सर, 98 में से 40 लोग तो जवाब दे ही सकते हैं फटाफट। थोड़ा इसमें तो शाय नहीं होना चाहिए हमको, इसमें तो हमको आंसर कर ही देना चाहिए स्कैन करके। सबके पास आज की डेट में आई बिलीव फोन तो होगा ही, और फोन है तो बेसिक कैमरा भी होगा, उससे ये स्कैन तो आपका हो ही जाएगा। तो फटाफट 6 जन और चाहिए मेरे को खाली आंसर के लिए, 6 जन और स्कैन कर ले फटाफट। थर्टी 35 लोगों ने स्कैन कर दिया है। मैं 30 सेकंड और वेट करता हूँ, अगर आंसर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आगे मूव ऑन करेंगे। 30 सेकंड और वेट कर लेते हैं। 4 लोग और चाहिए, 4 जन स्कैन कर लीजिए यार, फटाफट आंसर दे दीजिए यस या नो में। 3 लोग चाहिए, 37 हो गए, 38 हो गए, चलिए बढ़िया है। 2 लोग और चाहिए, 39। कई लोग ये भी आंसर कर रहे हैं हमने फोन से ही ज्वाइन किया है तो हम लोग कैसे स्कैन करें। यार यार ऑफिस में हो गए, एक आध किसी का फोन लेके आंसर कर दो ना, क्या दिक्कत है। चलो अपना टारगेट पूरा हो गया, 40 लोगों ने आंसर दे दिया। मेजोरिटी लोगों का आंसर यहाँ पे आप सब भी देख सकते हैं, 79% लोगों ने कहा है कि यू कैन नॉट क्लेम बेनिफिट ऑफ बोथ HRA एज वेल एज ATGG। सो मैं इसको बहुत अच्छा आंसर मानता हूँ, क्योंकि मेरा भी थॉट यही है कि आप ये दोनों चीज नहीं क्लेम कर सकते। क्योंकि अगर आप दोनों क्लेम करेंगे, एक तो पहली बात यहाँ पे प्रोविजन में लिखा हुआ था, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे प्रोविजन, वहीं पे पीछे लिखा हुआ था कि आप दोनों चीजें क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप करते भी हैं तो उसके अंदर बहुत हाई चांसेस है कि आपको नोटिस भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यू शुड नॉट बी गेटिंग HRA बेनिफिट्स इन योर सैलरी इफ यू वांट टू क्लेम 80GG। तो दोनों चीज आप कभी क्लेम नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम लोगों ने यही आंसर दिया है कि आप दोनों नहीं क्लेम कर सकते। सो आई थिंक काफी लोगों का टैक्स का नॉलेज इस मामले में काफी अच्छा है, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। तो आप नहीं क्लेम कर सकते, प्रोविजन भी यही कहता है। अगर आप क्लेम करते भी हैं तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। अब हम फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड देख लेते हैं व्हाइल फाइलिंग ITR। सबसे पहला AIS। कितने लोगों को AIS के बारे में पता है और कितने लोगों ने AIS के बारे में कभी सुना ही नहीं है? फटाफट यस नो फटाफट कर दीजिए, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमको फटाफट रैप अप भी करना है, तो आप आंसर दे दीजिए। यस नो यस नो यस नो चल रहा है। काफी लोग हैं जो लोग नो कह रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं खाली सुना है। सो ठीक है। तो जो लोग आई बिलीव टैक्स में काम करते हैं उनको तो पता होगा कि AIS क्या होता है। काफी लोग मना भी कर रहे हैं, तो मैं एक बेसिक सा बता दूं, जैसे मैंने इधर नाम लिख रखा है, फाइनेंशियल कुंडली इज इक्वल टू AIS। तो कुंडली क्या होती है? कुंडली एक ऐसी चीज होती है जो आपको बता देती है कि भाई इस पर्सन का आगे पीछे ऊपर नीचे सब क्या है। कुंडली, पंडित जी कुंडली देखते हैं और बता देते हैं कि भाई इस पर्सन का किस चीज का दोष है, कैसा उसका स्वभाव है, सब कुछ पता चल जाता है। उसी तरीके से AIS और TIS आपका बता देते हैं कि आपने किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, कौन सा म्यूचुअल फंड बेचा है आपने। जो भी लोगों ने AIS TIS देखा है वो अग्री करेंगे। आपको TDS पता चल जाता है, आपको TCS पता चल जाता है, आपने कौन सा शेयर खरीदा बेचा ये दिख जाता है, आपने कितना सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया, कितना एडवांस टैक्स दिया, सब पता चल जाता है आपको। तो इट्स अ फाइनेंशियल कुंडली ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आपने कुछ भी अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया है जो आपने ऑनलाइन किया है, मतलब आपने कैश में नहीं किया है, वो मेजोरिटी चीजें आपकी इस AIS के अंदर आ जाएगी। तो गवर्नमेंट को यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपने कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अंडरटेक किया है। तो इसीलिए आज के पहले जो लोग अगर 3 साल के आर्टिकलशिप में होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि फर्स्ट ईयर में जब वो आए थे तब शायद इतने सैलरीड एम्प्लॉय अपना शेयर का ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज नहीं करते थे। बट आफ्टर AIS एंड TIS अब वो अपने सारे शेयर के ट्रांजेक्शन्स भी डिस्क्लोज करने लग गए हैं, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी डिस्क्लोज करने लग गए हैं। क्योंकि पहले सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट, जिन पे TDS नहीं कटा होगा, वो कई लोग डिस्क्लोज ही नहीं करते थे। बट अब आफ्टर AIS TIS इट इंक्लूड्स ऑल योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेता है? ये इन्फॉर्मेशन आपके TDS से लेता है, कि आपने किसी ने आपका TDS काटा हो, वहां से ये इन्फॉर्मेशन लेता है। ये इन्फॉर्मेशन लेता है SFT से। अब SFT क्या होता है? SFT छोटा सा ब्रीफ में 1 मिनट बता दूंगा कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिसके अंदर कुछ 16-17 ट्रांजेक्शन्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं कि ये ट्रांजेक्शन्स अगर कोई SSC करता है तो जो भी रिस्पेक्टिव बॉडी होगी जो ये ट्रांजेक्शन
उस एसएससी के साथ अंडरटेक कर रही होगी, उसको वो ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो ट्रांजेक्शन कौन से हो सकते हैं? आपने शेयर्स खरीदे बेचे, आपने मान लो कोई जमीन खरीदी बेची, या आपने कोई डिविडेंड रिसीव किया किसी कंपनी से, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया किसी एनबीएफसी से। तो ये सारे ट्रांजेक्शन को गवर्नमेंट कवर करना चाह रही है, जो शायद टीडीएस से कवर नहीं हो रहे थे। अब एसएफटी का या एआईएस का गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? इससे गवर्नमेंट का मोटिव ये है सर कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स के अंदर या आपने शेयर्स बेचे हैं, इसका मतलब आपने कुछ इनकम भी अर्न की होगी। अगर आपने कुछ इनकम अर्न की है तो हम इनकम टैक्स रिटर्न भरें, अपना डेटा हमको दें, और जिससे हम आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर पाए। तो जब भी जो भी इंसान आज की डेट में इनकम टैक्स रिटर्न बना रहा है, उसको 3 चीजें हमेशा देखनी है इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट करने से पहले: 26AS, एआईएस और टीआईएस। इसके बाद ही आप इसके अंदर जितना डेटा आ रहा है उस डेटा को कंपेयर करें क्लाइंट ने आपको जो डेटा दिया उससे, और फिर आप चालू करें उसका रिटर्न बनाना। तो एआईएस हो गया। टीआईएस कुछ नहीं है, उसी इंफॉर्मेशन की एआईएस में जो बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होगी उसकी समरी टीआईएस में आती है। तो टीआईएस नथिंग बट अ समरी ऑफ एआईएस। फिर उसके अलावा आपके जो भी डिडक्शंस हैं 80C के अंदर, उसका आप प्रूफ जरूर मांगे अपने एसएससी से कि अगर वो बोलता है मैंने प्रीमियम पे किया है तो उसको बोलो प्रीमियम की रसीद दो। अगर वो बोलता है मैंने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है तो बोले आपके पीपीएफ का हमको पासबुक दिखाओ आपने इन्वेस्ट किया है तो। कई क्लाइंट मना करते हैं, बट आप कोशिश करें कि उनसे सारा डेटा लें। फिर आप जब आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, वो सही से सिलेक्ट करें। जनरली आईटीआर 5 में ये इशू आता है कि भाई वो फर्म है, एओपी है, या फिर क्या है, वो आप अच्छे से डिसाइड करें, क्योंकि आईटीआर 6 तो खाली कंपनीज के लिए होता है। आईटीआर 5 एक ऐसा आईटीआर है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की एंटिटीज आ सकती है। तो आप अच्छे से डिसाइड करें कि आपकी एंटिटी कौन सी है और उसके हिसाब से ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद आप जब आईटीआर 6 भर रहे हैं तो उसके अंदर ये जरूर अच्छे से डिसाइड करें कि आपकी कंपनी इंडियन है या फॉरेन है, क्योंकि दोनों ही केस में पूरा ट्रांजेक्शन और पूरा टैक्सेबिलिटी बदल जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें हैं जो अपने को समझना है जब हम रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हो किसी का, या फिर हमको कोई लॉस क्लेम करना है। तो हमको ये देखना है कि भाई ये लॉस हमने टाइमली रिटर्न भरा था तब ये लॉस क्लेम हुआ था या नहीं हुआ था, और ये लॉस हमने जो अमाउंट डाला था वो सही डाला था या नहीं डाला था। बिकॉज आफ्टर अ रिटर्न इज फाइल्ड, उसके बाद रिवाइज रिटर्न में नया डिडक्शन क्लेम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए ओरिजिनल रिटर्न में ही जब आप कोई भी लॉस या कोई भी डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, ये जरूर ध्यान रखें कि वो करेक्ट अमाउंट का डिडक्शन क्लेम हुआ है। इसके अलावा एक, अगर आप लोग लिंक्डइन पे थोड़े से एक्टिव होंगे तो आपको ये नोटिस एक सर्कुलेट की हुई दिख रही होगी, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा एसएससी को नोटिस भेजा जा रहा है कि आपने जो रिटर्न में डिडक्शंस क्लेम किए हैं उसके हमको प्रूफ दीजिए। और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो आपने डिडक्शंस क्लेम किया है तो आपका रिटर्न किसने फाइल किया था? क्या वो कोई सीए था, कोई टैक्स रिटर्न प्रिपेरर था, या फिर कोई एडवोकेट था? वो जो भी इंसान था उसका डेटा हमको दीजिए कि किसने आपका रिटर्न प्रिपेयर किया है। क्या आपने रिटर्न अपना खुद से साइन किया था या किसी और ने आपके बिहाफ पे साइन किया है? और जहां भी आपने रिटर्न प्रिपेयर करवाया था अगर किसी से, तो क्या उसने उसको आपने सारा डिडक्शन का डेटा दिया था या नहीं दिया था? तो इसीलिए जो मैं अभी आगे सारी बातें कर रहा था कि आपको सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एसएससी से या अपने क्लाइंट से लेने पड़ेंगे वाइल फाइलिंग योर आईटीआर। तो अब ये इशू आ रहा है, अभी इसका क्या आंसर निकल के आएगा वो हमको नहीं पता। बट 6 जून को ही ये नोटिस इशू हुआ था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक एसएससी को कि हमको ये सारा इंफॉर्मेशन दीजिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी कोई भी टाइप का आपको डॉक्यूमेंट डिडक्शन या क्लेम लेने को कहा जा रहा हो, तो आप उनसे कहिए कि हमको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, फिर ही हम आपका रिटर्न अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। उसके बिना हम अच्छे से आपका रिटर्न प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इतना ही था आज के सेशन में मेरी तरफ से। किसी के क्वेश्चन हो आप रेज हैंड कीजिए या फिर चैट में डालिए। और कल हम लेंगे हेड वाइज, जो भी हेड वाइज डिडक्शंस या हेड वाइज जो भी इनकम होती है उसको हम लेंगे, और उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें अपने को ध्यान रखनी होती है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही था। ये मेरा क्यूआर कोड है लिंक्डइन का। जो लोग लिंक्डइन पे एक्टिव हैं वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे को उधर फॉलो भी कर सकते हैं, हम लोग उधर भी डिस्कशन कर सकते हैं लिंक्डइन पे भी। तो जिन लोगों को भी लिंक्डइन पे मेरे से कनेक्ट करना हो, आप इस क्यूआर को स्कैन कीजिए। मैं 1 मिनट तक इस क्यूआर को यहीं पे रखूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस के लिए ये ओपन कर देंगे सेशन।
जब तक जिसको भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अपना रेज हैंड कीजिए, ताकि हम एक एक करके फिर वो सारे क्वेश्चंस लेके सबकी क्वेरी सॉल्व कर पाएंगे। आई बिलीव अभी तक बहुत लोगों ने लिंक्डइन पे स्कैन कर लिया होगा, कल भी ये अवेलेबल रहेगा, तो जो लोग नहीं कर पाएंगे कल आप स्कैन कर लीजिएगा, कल हम देख लेंगे। तो कल मिलते हैं। आज की अब क्वेरीज ले लेते हैं, जो भी फटाफट दो चार लोगों ने 5 लोगों ने हैंड्स अप किए हैं। तो पहले स्पर्श अग्रवाल को बोलते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड प्लीज टेल योर क्वेरीज। स्पर्श अग्रवाल, आर यू अवेलेबल? आई डोंट थिंक ही इज देयर। अगर आपको कोई क्वेरी चैट में भी डालनी है स्पर्श, तो आप डाल दीजिए। हो सकता है किसी वजह से आप अनम्यूट ना हो पा रहे हो, तो आप चैट में डाल दीजिए अपनी क्वेरीज। आई विल ट्राई टू टेक इट फ्रॉम देयर। कनीज है नेक्स्ट, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ कनीज, सो दैट आपकी क्वेरी जो होगी वो हम ले लेंगे। हेलो यस यस कनीज बोलिए। सर, ये पूछना था कि आपने जो भी बताया था कि जो आपने एग्जांपल दिया था बागा वाला, तो 6 लाख बताया था, तो टीडीएस की लिमिट मैक्सिमम क्या होती है? तो मैक्सिमम टीडीएस की लिमिट, ये सैलरी का केस हम डिस्कस कर रहे थे, तो सैलरी के केस में क्या कहा गया है, 192 सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, वो ये कहता है कि अगर एक पर्सन का जो टोटल इनकम है उसके ऊपर अगर वो टैक्सेबल इनकम से ऊपर जा रहा है, मतलब उस इनकम के ऊपर अगर टीडीएस या टैक्स लायबल आ रहा है, तो आपको टीडीएस कट करना है। मतलब इस जो मेरा एग्जांपल था उसके अंदर अगर मैं देखूं, अगर एक पर्सन की सैलरी 6 लाख रुपीज है, उसके अंदर अगर वो 1.5 लाख का ईटीसी का डिडक्शन ले लेता है, तो मतलब उसकी जो टोटल इनकम हो गई वो 4.5 लाख हो गई, और उसके ऊपर वो वापस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले लेता है, तो उसका जो टोटल इनकम है वो 4 लाख रुपए हो जाता है। और जो एक इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर एक प्रोविजन है रिबेट का, अंडर सेक्शन 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है, तो उसको एक 12,500 का रिबेट दिया जाएगा। तो सेक्शन 192 है वो बहुत ही ब्यूटीफुली ये कहता है, वो ये कहता है कि आपका जो टीडीएस है वो तभी डिडक्ट होगा इफ आपकी जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स कट हो रहा है, तो ही वो डिडक्ट होगा। तो इस केस में, बागा वाले केस में, क्योंकि उसकी जो टोटल इनकम है दैट इज बिलो 5 lakhs, एंड सिंस उसकी टोटल इनकम पे ही टैक्स नहीं आ रहा, तो अनलाइक एनी अदर टीडीएस प्रोविजंस, यहाँ पे आपको टीडीएस कट करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, बट ये एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस है। ओके सर। सर, एक बार एफडी की इंटरेस्ट लिमिट और सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट लिमिट बता दीजिए। सेविंग्स बैंक अकाउंट के Exemption। ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटता, उसके अंदर बहुत क्लियर है सेक्शन 194A कि आपको टीडीएस टीडीएस कट नहीं, कर। इंटरेस्ट की जो, सर इंटरेस्ट की जो लिमिट है क्या एग्जाम, चीज की लिमिट? तो सर वो जो हम तो डिडक्शन वो सेविंग्स बैंक की खाली डिडक्शन मिलता है आपको। एफडी का डिडक्शन खाली सीनियर सिटीजन को मिलता है, नॉर्मल नॉन सीनियर सिटीजन को सिर्फ 10,000 तक का डिडक्शन मिलता है, एग्जाम्पशन कोई नहीं है। डिडक्शन है सेक्शन 80 TTA के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आपका सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 10,000 तक है, तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। एफडी का डिडक्शन मिल जाएगा सीनियर सिटीजन को भी इफ द टोटल इंटरेस्ट ऑफ सेविंग प्लस इंटरेस्ट इज अप टू 50,000, तो 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट है विजय गुप्ता, सो इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर मुझे पूछना था कि पेयर्स के बारे में, क्योंकि उसके साथ एक कोई फॉर्म अटैच करते हैं तब वो हम Correct. रिटर्न में दिखा सकते हैं। तो सैलरी का क्या है, कल हम हेडवाइज लेंगे सारे इनकम का, तो तब हम सैलरी अरियर्स का डिस्कस कर लेंगे। मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, कल हम सैलरी अरियर्स अलग से ले लेंगे कि उसके अंदर आपके क्या क्या फॉर्म लग सकते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे हो सकता है, ब्रीफ में हम कल ले लेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है मार्तंड, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। Sir, am I audible? यस यस यू आर ऑडिबल, बोलिए। Sir, what was the form name in 80GG donation? What was 80 its 80GG के अंदर मैं रेंट की बात कर रहा था, डोनेशन की बात नहीं हो रही थी। 80GG के अंदर अगर आप रेंट पे करते हैं तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है, उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, ये 80G में जो डोनेशन होती थी, इसमें फॉर्म अच्छा। का कंप्लीट नेम क्या था?
फॉर्म 10BE जो आपको सर्टिफिकेट जो ट्रस्ट इशू करेगा ना, वो होगा फॉर्म 10BE के अंदर। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट है मांडवी सोनी। एक दो क्वेरी और ले लेंगे लास्ट में, तो आप अगर अपने आपको अनम्यूट कर देंगे तो थोड़ा क्वेरी फटाफट हो जाएगा। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे को ये पूछना था कि जो 44 AD में अपन रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब ITR 4 फाइल का जब करते हैं, तो Okay. क्या उसके लिए अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है या नहीं है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। उसके अंदर लॉ के अंदर ही कहा गया है कि इफ यू आर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, तो उसका बेनिफिट ही वो है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी असेसी ने मेंटेन की है फॉर देयर इंटरनल पर्पस, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट एज पर लॉ आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और सर अगर अपन ITR 3 फाइल करते हैं और उसके अंदर अपन ने इनकम जो है वो प्रिजम्पटिव से ज्यादा दिखाई है, मतलब 8% से ज्यादा दिखाई है, बट हमारी जो टर्नओवर है वो लेस देन 10 lakhs है, तो उस केस में क्या अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? नहीं, आप वापस बोले क्वेरी। सर जो ITR 3 होता है वो अपन इसलिए फाइल करते हैं ना कि अपना प्रिजम्पटिव नहीं दिखाना चाहते अपन लोग, बराबर। और अगर लेकिन अपन उसके अंदर अपनी इनकम जो है वो 8% से ज्यादा दिखा रहे हैं ठीक है। और बिजनेस टर्नओवर अपना 10 लाख से कम है, तो क्या उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? नहीं, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे होंगे या बना नहीं रहे होंगे, तो आप ITR 3 फिल कैसे करेंगे? सर वो आप उसके P&L लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? P&L तो सर वो फॉर्म उसी पे फिल हो जाता है ना, पोर्टल हाँ, पे। नहीं तो आपने P&L बनाया कैसे होगा अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो? सर एक एस्टिमेटेड अगर किसी ने बना रखा है, हाँ, मतलब कोई जर्नल वगैरह कुछ नहीं बनाया, बट एस्टिमेटेड बैलेंस शीट P&L आपने बना रखा है, उसके बराबर। बेसिस पे आपने फाइल कर दिया, देखिए, तो दो क्या चीज वो होती है। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं 44AA में जो लिमिट दी गई है, क्योंकि मेरा टर्नओवर 10 लाख से कम है, तो मैं 44AA की लिमिट में पॉइंट फॉल नहीं कर रहा, तो मेरे को जो प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेंटेन नहीं करना, बट मैंने कोई और तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है जिसके बेस पे मैंने P&L भरा है, तो कल उठ के अगर गवर्नमेंट को या असेसिंग ऑफिसर को कोई क्वेरी उठी कि वो बोलेगा कि यार आपने P&L भरा है, इसके अंदर आप बोल रहे हो कि मेरे को खर्चा हुआ है, मेरा रेंट एक्सपेंस है 1,20,000 रुपए, अब बताओ ये कौन सा रेंट एक्सपेंस है, तब आप ये नहीं बोल पाएंगे कि मैंने अपने मन से भर दिया या मेरे को एस्टिमेट बेस पे मैंने ये रेंट डाल दिया है। आपको कोई ना कोई बैकिंग देना पड़ेगा। अगर आप ITR रहे हैं तो आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ तो दिखाना पड़ेगा उनको, जिसके बेस पे आप बोलेंगे कि यार ये देखो मैंने ये 1,20,000 ऐसे कैलकुलेट किया है। तब आप ये नहीं कह सकते कि 44AA इज सेइंग कि आपको ये प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ITR 3 भर रहे हैं तो आप बोलेंगे मैंने कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन की तो आप ITR 4 भरिए, 44AD यूज कीजिए। ओके सर, थैंक यू। यस, ओके। एक लास्ट क्वेरी ले लेते हैं, दिलीप राठौड़ हैं, उनकी क्वेरी ले लेते हैं, बस एक लास्ट क्वेरी करते हैं। सर यस सर, जो LIC प्रीमियम का जो डिडक्शन है उसके बारे में मेरी हाँ। क्वेरी थी। हाँ, जैसे आपने बताया कि अगर LIC प्रीमियम 10% ऑफ द सम एश्योर्ड तक से ज़्यादा है तो उसका वो नहीं मिलेगा डिडक्शन। बराबर। तो आई थिंक शायद एक 10% और अप टू 10% मिल जाएगा, एक्सेस का नहीं मिलेगा। नहीं, अगर आपका 10% का ही वो अमाउंट है, आप एक बार वापस देखिएगा, कल हम वापस डिस्कस करेंगे, मैं कल भी यही हूँ, बट उसमें ये लिखा गया है कि जो भी प्रीमियम आपका जो भी पॉलिसी है उसका प्रीमियम अगर 10% से ज्यादा हो रहा है तो आपको उस पूरे प्रीमियम का ही, उस पॉलिसी का ही डिडक्शन नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो अगर वो पॉलिसी बाहर हो जाएगी तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अगर मान लेते हैं मेरा पॉलिसी है 20 लाख रुपए का, ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं 2 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहा, सॉरी 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो मेरा तो लिमिट वैसे भी 1.5 लाख है, आप मेरे को 1.5 लाख डिडक्शन दे दो, वैसे भी ऊपर का 1 लाख तो वैसे भी मेरे को नहीं मिलना था ATC के अंदर, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो पॉलिसी मेरे हिसाब से तो इनएलिजिबल हो जाएगी आपके ATC के डिडक्शन के लिए। एक बार आप वापस, हाँ आपके स्लाइड में भी ये लिखा हुआ था कि प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम और 10% ऑफ सम एश्योर्ड व्हिच एवरेज लेस। ओके, मतलब 10% ऑफ द प्रीमियम और एक्चुअल प्रीमियम विचर इज लेस, वो लिखा था ना। 10% ऑफ द सम एश्योर्ड और हाँ द प्रीमियम पेड व्हिच एवरेज लेस।
हाँ तो पूरा मेरा कहने का मतलब पूरा बार्ट नहीं होगा, वो अप टू 10% उसका डिडक्शन मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। कल अपन और बात कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कल डिस्कस कर लेंगे सर। ओके सर, ओके थैंक यू। ठीक है, ओके ओके, यू आर वेलकम। आज की क्वेरीज आई थिंक इतनी ही रखते हैं, क्योंकि टाइम भी आप लोगों का हो चुका है कंप्लीट सेशन का, तो आई थिंक 10 मिनट ऊपर ही चले गए हैं। तो आज की क्वेरीज तो ये रखते हैं, अगर किसी को कोई क्वेरीज भी आती है आज के सेशन में तो आप नोट डाउन करके रखिएगा। कल अगर टाइम अपने पास बचेगा तो अपन कल वो क्वेरीज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेरीज सारी क्लियर करेंगे सबकी। बट आज के सेशन में आई थिंक इतना ही है। अगर कोई कमिटी में से अवेलेबल है तो कुछ और कहना है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर इसको मीटिंग को क्लोज कर देता हूँ। Sir, I have a doubt. Hello. कौन बोल रहे हैं? स्पर्श बोल रहे हैं? Yeah. Sir, ठीक है, ओके, हाँ बोलिए। one doubt था कि अगर सपोज एक सैलरीड एम्प्लॉय है, उसको उसमें उसकी मार्च की सैलरी अप्रैल में मिली है ठीक है, एंड वो टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, और तो वो जो सैलरी का अमाउंट जो अप्रैल में मिला है वो तो आईटीआर में शो करेंगे, बिकॉज क्योंकि सैलरी तो टैक्सेबल accrual or cash basis whichever is earlier के basis पे होती है। बराबर, यू आर करेक्ट। तो फॉर्म 16 में तो शो नहीं होगी, तो उससे सैलरी स्लिप लेनी पड़ेगी ना? नहीं, बट देन उसके अंदर हमको ये देखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड ना, नहीं उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपका जो प्रोविजन के हिसाब से आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है कि आपका जो सैलरी है वो ड्यू बेसिस पे या अक्रूवल बेसिस पे चलता है। तो अगर आपका जो मार्च का सैलरी है वो अप्रैल के अंदर अगर आपको मिला है कैश बेसिस पे, बट आपको ऑलरेडी वो ड्यू हो गया था मार्च के अंदर, तो आपको उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। अब जहां तक बात रही कि फॉर्म 16 में वो नहीं आया, कई लोग, क्योंकि एज पर सेक्शन 192 ये बोलता है कि टीडीएस पेमेंट बेस पे डिडक्ट होगा। तो क्योंकि टीडीएस पेमेंट बेस पे डिडक्ट होगा तो हो सकता है एम्प्लॉयर भी अपनी जगह गलत ना हो, ये एक प्रोविजन में थोड़ा सा इशू है। बट एज फार एज अवर एसएससी इज कंसर्न, उसको सैलरी इनकम आ रही है तो हमको तो अक्रूवल बेस पे ही उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में करेक्टली डिस्क्लोज कर देना है। अगर कल उठ के हमको अगले साल के फॉर्म 16 में वो दिखता है तो हमको उस साल के क्रेडिट को लेते हुए ये कह देना है कि हमारा इसके ऊपर जो इनकम था वो हम ऑलरेडी पहले के सालों में दिखा चुके हैं, और जो अरियर्स का अपना फॉर्म आता है अरियर्स का या एडवांस का, वो आप भर के उसको क्रेडिट ले सकते हैं। एंड सर एक और डाउट था। हाँ बताएं। सर वो एक क्लाइंट है, वो एनिमेशन का वर्क काम करता है, तो उसको 194J के अंदर टीडीएस डिडक्ट होता है। ओके, तो इधर जो है वो उसको पीडीबीपी इनकम शो करना चाहिए कि आईएफओएस के शो करना? इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर कि अगर आप बोलते हैं कि यही मेरा बिजनेस या प्रोफेशन है तो आप उसको पीजीबीपी दिखाएं। अगर आप बोलते हैं कि ये हम लोग ऐसे ही नॉर्मल कभी कभी कर लेते हैं, इट्स नॉट माय रेगुलर सोर्स ऑफ बिजनेस या इट्स नॉट माय रेगुलर प्रोफेशन, तो आप उसको फिर अदर सोर्स में दिखाएं, आईएफओएस में, वरना आप इसको पीजीबीपी दिखाएं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर डिक्लेरेशन। उसने वैसे 9 to 10 मंथ्स के लिए वो काम किया था, देन वो जो है जॉब करने लगा था। वो डिपेंड करता है, उससे टेन्योर इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप कैसे उसको डिक्लेयर करना चाहते हैं, दैट्स योर विश। मतलब इट्स नॉट रिटर्न एनीवेयर कि आपको इसको बिजनेस कब दिखाना है या फिर वो कब दिखाना है, इट्स योर विश। थैंक यू सर, बस Yeah. ये यस अनिल सर। हाँ आई थिंक जो क्वेरीज थी पूरी सॉर्ट आउट हो गई और बहुत हाँ। अच्छे तरीके से नमन जी आपने समझाया, थैंक यू सो मच। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो, मैं तो आपको ये कहूंगा सिंपल जो आज बताया है नमन जी ने उसको आप एक लोग सब रिवाइज करें, एक बार आप देखें आपके हिसाब से, फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप उसे लिख के रखें। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम के ऊपर 4 to 5 TT, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप पूछे। अच्छा पूछना जरूर, नहीं पूछोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, और अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? हाँ, तो आप जो भी डिस्कशन करने query- बैठे हैं, कोई भी ये ना सोचे हाँ? कि यार इनको मैं पूछूंगा ये क्या मानेंगे, और हो सकता है उस टाइम अल्टीमेटली शायद उस टाइम मेरे पास उस चीज का आंसर ना हो, बट आप बाद में भी कनेक्ट कीजिए। लिंक्डइन पे मैंने आपको लिंक्डइन दे दिया, आप वहाँ कनेक्ट कीजिए वहाँ करेक्ट। और नॉट ओनली दिस कि मैं तो कह रहा हूँ हम जब सीए बन जाते हैं, डिग्री आ जाती है, तो भी हाँ हम लोग डिस्कस करते हैं, तो भी हम बिल्कुल पूछते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या नहीं होगा। तो ना आपको सब स्टूडेंट्स है, आपको तो कहीं कोई हिची नहीं होनी चाहिए, आपको जो लगता है वो आप पूछिए ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नमन जी, कल फिर मिलते हैं, कल फिर आपको बिल्कुल परेशान सर, करेंगे। बिल्कुल सर। ओके थैंक ओके यू सर, सर, थैंक ओके। यू, ओके बाय।